the 8 student panelists to please be seated on their respective chairs on the stage. It's my privilege to invite on stage Mr. Raghunath Medge and Gangaram Thalikar, and also Mr. Haq. And Mr. Haq is the president of JMA, Jalandhar Management Association. Haq, President, JMA, as a session moderator. Before we request our dignitaries to be seated on the dais, I would also request the 8 student panelists to please be seated on their respective chairs on the stage. It's my privilege to invite on stage Mr. Raghunath Medge and Gangaram Thalikar, and also Mr. Haq. And Mr. Haq is the president of JMA, Jalandhar Management Association. 20 years with Punjab Financial Corporation, and in 2020 years with Punjab Financial Corporation, and in 2000 e-surveillance in the name of Excel Technology and Security Solutions at Jalandhar. The company has executed CCTV surveillance projects at PCA Mohali during ICC World Cup 2011 and IPL matches, besides being one of the fastest growing e-security company in India and currently undertaking several corporate and institutional projects. Mr. Haq has traveled to Japan, UK, Singapore, China, and several other destinations on business and study tours. Besides business, he's got a passion to interact with students and is often invited by various institutes, universities, and corporates for delivering guest lectures. He is also managing his own training institute in the name of Center for Training and Management Development at Jalandhar, which provides different courses of e-commerce, management, and skill development for employability. As the president of Jalandhar Management Association, he is conducting several management development programs and organizing multiple events as part of spreading the management movement. So now I hand over the proceedings to Mr. Haq, and I request him to introduce Mr. Raghunath Medge and Gangaram Thalikar. As we all know, once again, huge round of applause for Mumbai Dabbawalas and please take the program forward, sir. Good morning once again, young students. It's my honor to introduce the speakers of the session 1, Mumbai Dabbawalas. Mr. Raghunath Medge is the president of Nutan Mumbai Tiffin Box, and Mr. Gangaram Thalikar is the secretary, Nutan Mumbai Tiffin Box. They are successor of the great warriors, Mable, who were associated with noble King Chhatrapati Shivaji Maharaj, the founder of Maratha Empire. They starved to protect people from brutality of the rulers. Today, they carry tiffins, lunch boxes, from home of the customer and carry it to their workplace. They started in 1890, were registered as a charitable trust in 1956. Average literacy rate of an employee is 8th grade schooling. Total service area covered is 60 kilometers to 70 kilometers. The total employee strength is 5,000. Number of tiffins served are about 2 lakh tiffins. Boxes approximately 4 lakh transactions every single day. Can we have a round of applause for this great transaction taking on daily basis? Time taken is 3 hours. 6 Sigma program performance registered with Guinness Book of World Record. And replaced, believe it or not, received ISO 9001-2000 certificate and also 5 foundation awards in 2007. One among most 10 favorite things in Mumbai along with
Vada Pav. Recognitions include documentaries made by BBC, UTV, MTV, ZTV, Aaj Tak TV, Today, Sahara Same, Star TV, CNBC, TV18, CNN, Sony TV, TV Tokyo, NDTV, Channel 7, DD Metro, Doordarshan. They are being studied as case study at Richard Ivey School of Business, Ontario IFIM Business School, Bangalore, IIM Ahmedabad, ICFAI Press, Hyderabad, Agarwal Institute of Management, Mumbai. Invitation from IMA, CII for conferences held in Bangalore, IIML, IIMA, CII Cochin, CII Delhi, Dr. Reddy's Lab Foundation, Hyderabad, Sindate Pune, SCMHRD Nasik, MIT Pune, MET Mumbai, IIT and IIM, Harvard USA, Cambridge Oxford, included in a subject in University of California. Barclay Radio, German Radio Network, Radio Mirchi, Radio Midday FM, Gold, BBC Radio, Radio City. Prince Charles honored them by visiting in 2003. The Prince was presented a small memento accompanied with a garland, a Gandhi topi and a toffee by the Dabbawalas. Invited at TerraMed World Meeting of Food Communities in 2004 and 2006. Received invitation for marriage of Honorable Prince Charles of England in 2005. Invited at YPO chapters Kenya and Nigeria in 2007. And at London for opening of Tiffin Bite Hotel in June 2007. This is a small profile but very, very exciting. I hope all the students are excited to be part of this session 1. Are you excited? Yes. Now over to the speakers. Thank you very much. E-surveillance in the name of Excel Technology and Security Solutions at Jalandhar. The company has executed CCTV surveillance projects at PCA Mohali during ICC World Cup 2011 and IPL matches, besides being one of the fastest growing e-security company in India and currently undertaking several corporate and institutional projects. Mr. Haq has traveled to Japan, UK, Singapore, China, and several other destinations on business and study tours. Besides business, he's got a passion to interact with students and is often invited by various institutes, universities, and corporates for delivering guest lectures. He is also managing his own training institute in the name of Center for Training and Management Development at Jalandhar, which provides different courses of e-commerce, management, and skill development for employability. As the president of Jalandhar Management Association, he is conducting several management development programs and organizing multiple events as part of spreading the management movement. So now I hand over the proceedings to Mr. Haq and I request him to introduce Mr. Raghunath Medgay and Gangaram Thalikar. As we all know, once again, huge round of applause for Mumbai Dabbawalas and please take the program forward, sir. Good morning once again, young students. It's my honor to introduce the speakers of the session 1, Mumbai Dabbawalas. Mr. Raghunath Medgay is the president of Nutan Mumbai Tiffin Box and Mr. Gangaram Thalikar is the secretary Nutan Mumbai Tiffin Box. They are successor of the great warriors Mable who were associated with noble King Chhatrapati Shivaji Maharaj, the founder of Maratha Empire.
They starved to protect people from brutality of the rulers. Today, they carry tiffins, lunch boxes from home of the customer and carry it to their workplace. They started in 1890, were registered as a charitable trust in 1956. Average literacy rate of an employee is 8th grade schooling. Total service area covered is 60 kilometers to 70 kilometers. The total employee strength is 5,000. Number of tiffins served are about 2 lakh tiffins. Boxes approximately 4 lakh transactions every single day. Can we have a round of applause for this great transaction taking on daily basis? Time taken is 3 hours. Six Sigma program performance registered with Guinness Book of World Record and replaced Believe It or Not. Received ISO 9001-2000 certificate and also 5 foundation awards in 2007. One among most 10 favorite things in Mumbai along with Vada Pav. Recognitions include documentaries made by BBC, UTV, MTV, ZTV, Aaj Tak TV, Today, Sahara Same, Star TV, CNBC, TV18, CNN, Sony TV, TV Tokyo, NDTV, Channel 7, DD Metro, Doordarshan. They are being studied as case study at Richard Ivey School of Business, Ontario IFIM Business School, Bangalore, IIM Ahmedabad, ICFAI Press, Hyderabad, Agarwal Institute of Management, Mumbai. Invitation from IMA, CII for conferences held in Bangalore, IIML, IIMA, CII Cochin, CII Delhi, Dr. Reddy's Lab Foundation, Hyderabad, Sindate Pune, SCMHRD Nasik, MIT Pune, MET Mumbai, IIT and IIM, Harvard USA, Cambridge Oxford, included in a subject in University of California. Barclay Radio, German Radio Network, Radio Mirchi, Radio Midday FM, Gold, BBC Radio, Radio City. Prince Charles honored them by visiting in 2003. The Prince was presented a small memento accompanied with a garland, a Gandhi topi and a trophy by the Dabbawalas. Invited at Terra Med World Meeting of Food Communities in 2004 and 2006. Received invitation for marriage of Honorable Prince Charles of England in 2005. Invited at YPO chapters Kenya and Nigeria in 2007. And at London for opening of Tiffin Bite Hotel in June 2007. This is a small profile but very, very exciting. I hope all the students are excited to be part of this session 1. Are you excited? Yes. Now over to the speakers. Thank you very much. आपने हमें बुलाया जालंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन के आदरणीय एहसानुल हक साहब, सेक्रेटरी विशाल शर्मा साहब, आर्मा के डायरेक्टर आदरणीय और परम स्नेही हमारे दोस्त संजय गौर साहब, एम्बेसडर होरा साहब, कमिश्नर साहब, कॉलेज के प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, सभी को
मुंबई वालों की ओर से सादर प्रणाम। हम जब स्टूडेंट के सामने खड़े होते हैं तो जैसे कोई जज के सामने हम खड़े हैं और जज के सामने जब कोई खड़ा होता है तो क्या कहते हैं, जो कुछ कहूंगा सच्ची कहूंगा, सच्ची से कुछ नहीं कहूंगा। जो हम क्या काम करते हैं और काम के बारे में हम आपके सामने हमारे जो है डेटा रखेंगे। पहले सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को एक विनती करता हूँ और सूचना देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। पहले स्टूडेंट्स, मुझे ना मिली वो खुशियां आपने पाई, मुबारक हो तुम्हें, आप अपने कॉलेज की पेड़ की पढ़ाई। हम जो काम करते हैं मुंबई में, काम छोटा है जगह का, घर से लेने का, ऑपरेशन देने का। तो हमारे मंडल का नाम है मुंबई मंडल 17 साल कहने के ढंग से वंदन करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, जिनसे पगड़ी पहनी है वो हमारे फाउंडर मेंबर कैलाश वासी महादेव जी बच्चे, उनके बाजी में उनके भाई कैलाश वासी डूंडीबाजी में थे, और यहाँ आए पेशेंट हमारे लोकनाथ जी में थे। देखिए, प्रोग्राम में वैसे यहाँ काम नहीं करना है, ऐसा मनोहर फर्ज है, मंदिरा बेदी है, नीचे हमारा मंदिर का आईडेंटिटी कार्ड है। अब नूतन मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे इसके भी हक साहब ने आपको बता दी। हमारी शुरुआत हुई 1890 में और 1956 में। उनके बाद एवरेज स्कूलिंग, इनके बारे में क्या कहेंगे? अगर मुझे आने जाती तो मैं हिंदी में क्यों बात करता, मगर यहाँ जो इंटरेस्ट है ना 5,000 लोग, there are 5,000 people in our organization, but 3,500 thumbs up and I also come from. बिल्कुल आपने हमें बुलाया, जालंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन के आदरणीय एहसानुल हक साहब, सेक्रेटरी विशाल शर्मा साहब, आर्मा के डायरेक्टर आदरणीय और परम स्नेही हमारे दोस्त संजय गौर साहब, अम्बेसडर होरा साहब, कमिश्नर साहब, कॉलेज के प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, सभी को मुंबई वालों की ओर से सादर प्रणाम। हम जब स्टूडेंट के सामने खड़े होते हैं तो जैसे कोई जज के सामने हम खड़े हैं और जज के सामने जब कोई खड़ा होता है तो क्या कहते हैं, जो कुछ कहूंगा सच्ची कहूंगा, सच्ची से कुछ नहीं कहूंगा। जो हम क्या काम करते हैं और काम के बारे में हम आपके सामने हमारे जो है डेटा रखेंगे। पहले सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को एक विनती करता हूँ और सूचना देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। पहले स्टूडेंट्स, मुझे ना मिली वो खुशियां आपने पाई, मुबारक हो तुम्हें, आप अपने कॉलेज की पेड़ की पढ़ाई। हम जो काम करते हैं मुंबई में, काम छोटा है जगह का, घर से लेने का, ऑपरेशन देने का। तो हमारे मंडल का नाम है मुंबई मंडल 17 साल कहने के ढंग से वंदन करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, जिनसे पगड़ी पहनी है वो हमारे फाउंडर मेंबर कैलाश वासी महादेव जी बच्चे, उनके बाजी में उनके भाई कैलाश वासी डूंडीबाजी में थे, और यहाँ आए पेशेंट हमारे लोकनाथ जी में थे। देखिए, प्रोग्राम में वैसे यहाँ काम नहीं करना है, ऐसा मनोहर फर्ज है, मंदिरा बेदी है, नीचे हमारा मंदिर का आईडेंटिटी कार्ड है। अब नूतन मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे इसके भी हक साहब ने आपको बता दी। हमारी शुरुआत हुई 1890 में और 1956 में। उनके बाद एवरेज स्कूलिंग, इनके बारे में क्या कहेंगे? अगर मुझे आने जाती तो मैं हिंदी में क्यों बात करता, मगर यहाँ जो इंटरेस्ट है ना 5,000 लोग, there are 5,000 people in our organization, but 3,500 thumbs up and I also come from. बिल्कुल जहां मेरी खुद की नजर डूबी वो एजुकेशन ही कम था।
Gujarat which has just talented safety 70 किलोमीटर घर से हो बैक टू एमपी बैक टू होम 70 किलोमीटर जिससे लोग जाते हैं और हम आते हैं 5,000 लोग मिलकर काम करते हैं क्योंकि एक टिफिन कम से कम 4-5 आदमी के हाथ से हैंड होने के बाद सही समय पर सही खाना ऑफिस में जाता है मगर इनके लिए हमारे मंडल की ओर से आज 5,000 लोग काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ टिफिन 2 लाख डब्बे एक आदमी का 40 में फायदा होगा 2 लाख डब्बे अगर 40 टिफिन नहीं होंगे तो उनका 13 तो कोरोना होगा इनके लिए 2 लाख डब्बे घर से ऑफिस एमटी बैक टू होम 2 लाख 4 लाख डब्बे पर डे हमारे लोग अर्ज करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो है प्रेसिडेंट भाई जैसे यहाँ स्ट्रक्चर हक साहब है शर्मा साहब है बरोज साहब है जब सिर्फ है तभी अब होता है वर्गीय मुद्दे लोग सप्लाई एसोसिएशन के बारे में एरर रेट वन सिक्किम ट्रांजेक्शन एरर ये सब अंग्रेजी करेक्शन मेरी कोशिश जारी है पढ़ने की आई विल ट्राई टू रीड बट आई डोंट नो व्हाट इज एरर बट समझ इज एरर हॉरर आई डोंट नो द मिरर सिक्स सिग्मा पर मंथ नहीं हमें सिक्स सिग्मा से मिला है उनके बारे में सीधे बराबर हम सबको उड़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी अकाउंटेंट टेक्नोलॉजी घर है नाम है टेक्नोलॉजी पर मगर हमारे टेक्नोलॉजी बाइसिकल लोकल ट्रेनिंग ह्यूमन पावर एंड आई हैव होल कंप्यूटर तो इसमें कंप्यूटर कवर अभी टोपी में काम करते समय तो उन्हें भी 50 रुपये फाइन है कई हमारे उसमें पुराने और पुराने उसमें हम आज भी काम करते हैं 50 करोड़ का हमारा टर्नओवर है सॉरी 500 600 रुपया मंथली आप लोग टिकट पकड़ा देते महीने का 30 दिन का और 50 करोड़ का हमारा टर्नओवर है नो स्ट्राइक रिकमेंडेशन स्ट्राइक भी सुसाइड बस हमने काम हमारा ईश्वर है बॉम्बे में स्ट्राइक हुआ मिली थी वो स्ट्राइक होने के बाद मेरे बंद बढ़ गई क्यों हुआ किसने क्या वो बात अलग था मगर स्ट्राइक होने के बाद हमारे लोग घर बैठ गए खाने के लिए होता है काम की तकलीफ तो किसी फ्रेश होकर काम पे जाओ मगर स्ट्राइक के बारे में कभी ना सोचो अर्निंग 10,000 पर मंथ 9,000 इतना तो काफी नहीं मगर समाज में सोसाइटी में रहना है ना सब झुका के जियो ना मुंह छुपा के जितना मिलता है उतने खुश रहो ये हम लोग कहते हैं दिवाली बोनस एक महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं डिसिप्लिन के बारे में डॉल को डेली ड्यूटी ऐसे हम तो यहाँ कमिश्नर साहब क्या है सार्वजनिक मंत्री तो नहीं है मगर सुबह 9 से 6 बजे तक कोई लेंगे तो उन्हें हाजत फाइन है टोपी के बारे में कहा आईडेंटिटी कार्ड के बारे में कहा नो नोटिस अगर हम जिम में काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ आपकी खबर मुझे मेरी खबर आपको चाहिए तभी काम सफल होता है बहने हमारी भिको भाई आनंद पार्वती भाई लक्ष्मी भाई इसे देखिए नहीं तो स्मार्ट हार्ड हुआ मगर हार्ड है स्मार्ट वो तो इंसान का ऐसा आता है राह में छाए में छोड़ देता है कभी कभी हमारे भाई साइकिल जाते ट्रक नहीं जाते ट्रेन जाते समय हाथ से पटरे भी गिरते हैं एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट होने के बाद बाहर में भर्ती होता है घर की जिम्मेदारी बहनों पर आकर पड़ती है लोग आते हैं मैं हम मगर क्या है कोई किसी का नहीं छुट्टी नाते हैं ना तो गया राशन कोई लाके देता नहीं भाषण दे चले जाते किसी भले इंसान ने कहा है पूरा पैसा तो नहीं है पैसा खुला तो नहीं है मगर खुला से कम नहीं है आज की स्थिति इसके लिए काम करना चाहिए काम करना चाहिए उन्होंने को हमारी मीटिंग हुई थी हर 15 को ग्रुप को बोला लेते भाई देखिए आज तक ये बहनों का पिता पति भाई लड़का अपने साथ काम करता था आज उनके ऊपर आफत आई है तो जितना पैसा आपको मिलेंगे उतना पैसा उन्हें मिलना चाहिए उन्हें साइकिल चलाना नहीं सिर पर वजन लेके चलना नहीं नजदीक का एरिया देने का जिनका पेमेंट जा रहा है वो बहन हमारी टिफिन लेके जाएंगी और काम करेंगी और पैसा लेगी और उनके बाल बच्चे पढ़ाएंगी और घर भी चलाएंगे ऐसे हम लोगों को कहते हैं यहाँ समय की जगह थोड़ी तकलीफ है इसके लिए मैं भी हैंड ओवर करता हूँ रघुनाथ जी के पास मेरा जय हिंद जय पंजाब। सुस्वागतम गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी टू एल्डर्स गुड टू कलीग्स एंड यंगस्टर्स आज हमें शेपिंग यंग माइंड्स प्रोग्राम में बुलाकर हमारा स्थापन जानने के लिए आप सभी आतुर होंगे। आज के प्रोग्राम के आदरणीय प्रेसिडेंट एहसान उल हक साहब, सेक्रेटरी विशाल शर्मा सर और हमारे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के डायरेक्टर संजय गौर साहब, आए सभी प्रोफेसर स्टूडेंट्स, आए हुए गेस्ट स्पीकर्स, देवी और सज्जनों, सबको डब्बावाला एसोसिएशन की तरफ से आपके बायो लाइफ के लिए शुभेच्छा और सदिच्छा।
आईमा और जालंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा जो प्रोग्राम किया है उसके लिए कहना चाहता हूँ, मुसीबतों में शराफतों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबतों में शराफतों की शराफत कम नहीं होती। होने तो दुनिया में बहुत सारे मैनेजमेंट एसोसिएशन, फिर भी आईमा और जालंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन की कीमत कम नहीं होती। हमारे डब्बे वालों की कथा व्यथा और ऐसा कथा हमेशा मानव सेवा के साथ चलती आ रही है, भविष्य में चलने वाली है। हम सब डब्बे वाले पश्चिम महाराष्ट्र से वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो हर वर्क करने के लिए चाहे शक्ति चाहे हम छत्रपति शिवाजी महाराज से सीख चुके हैं, बिजनेस करने के लिए जो नम्रता चाहे वो साधु संतों से सीख चुके हैं। यानी शक्ति और भक्ति के मिलन से इतना बढ़िया नेटवर्क हमारा हो रहा है। और हमारा बिलीफ है वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड। काम करते समय जो 5,000 डब्बे वाले 800 ग्रुप में काम कर रहे हैं, हर एक ग्रुप का कंपटीशन, हर एक ग्रुप के कस्टमर अलग है, हर एक ग्रुप का इनकम सोर्स अलग है। मगर बंबई के 70 लोकल स्टेशन लंच टाइम 12:30 का कवर करने के लिए सब मिलजुल के सप्लाई चेन में आते हैं और इतना हार्ड वर्क करते हैं। टीम वर्क बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। हर एक डब्बे वाले का टारगेट होता है 35-40 टिफिन्स और 35-40 टिफिन्स का वेट होता है 60-65 kg। उस सर पे लेके दौड़ना है, साइकिल पे लेके दौड़ना है, ट्रेन के साथ दौड़ना है, दौड़ती हुई बम्बे के साथ दौड़ना है। और इतना हार्ड वर्क करने की जिसके पास शक्ति है वही डब्बे वाला का काम कर सकता है। ऐसे बम्बई में 5,000 डब्बे वाले के 800 टीम 70 लोकल स्टेशन पे टीम वर्क होता है। और दूसरा हमारा यूजफुल व्हीकल है, यूजफुल व्हीकल साइकिल है। साइकिल यूज करने से 0% फ्यूल, 0% पोल्यूशन है, 0% इन्वेस्टमेंट है, 0% मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, 0% डिस्प्यूट्स है। और इसलिए जो 99.997% परफॉर्मेंस मिला है तो केवल डब्बे वाले से नेटवर्क से हमें मिल नहीं रहा, उसके साथ साथ बाइसिकल का बड़ा योगदान है। आज तक इंडिया गवर्नमेंट ने साइकिल चलाने के लाइसेंस कंपलसरी किया नहीं है, साइकिल खरीदने के लिए आरटीओ रजिस्ट्रेशन भी किया नहीं है। और मुंबई में इतनी ट्रैफिक होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, जब हम कस्टमर के घर से डब्बे कलेक्ट करते हैं 9 से 10 बजे तक हमको स्टेशन में पहुंचना है, इतनी ट्रैफिक जाम होते हैं कि आप 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में फंस जाओगे कोई व्हीकल लेके जाओगे तो। अगर अच्छा हुआ इंडिया गवर्नमेंट ने साइकिल के लिए लाइसेंस नहीं रखा है और डब्बे वाले जब मॉर्निंग में घर से डब्बे कलेक्ट करते हैं 35-40 टिफिन कलेक्ट करने के लिए हर घर में जाते हैं और 10:15 बजे तक उसको रेसिडेंसी स्टेशन पे पहुंचना होता है 5-6 किलोमीटर दूरी से। अगर लाइसेंस होता तो हम नो एंट्री में घुस नहीं सकते थे, सिग्नल नहीं तोड़ सकते थे। ट्रैफिक जाम होता हम बाइसिकल साइकिल फुटपाथ से लेके भागते हैं। बम्बई की जो पुलिस है, आरटीओ पुलिस है, सिटी पुलिस है, रेलवे पुलिस है, सब हमें देख रहे रोज डब्बे वाले डिसिप्लिन तोड़ रहा है। मगर करे क्या, 40 कस्टमर के डब्बे अनाज में भरे होते हैं, उसको 12:30 के पहले 60-70 किलोमीटर डेस्टिनेशन जाना है ट्रेन से और उसको 12:30 का लंच टाइम कवर करना है। इसलिए हम मॉर्निंग में खाली 1 घंटा रूल्स एंड रेगुलेशन साइड में रहते हैं, नो एंट्री में घुस सकते हैं, सिग्नल तोड़ सकते हैं, शायद फुटपाथ से साइकिल लेके जाते हैं। रेलवे की पटरियां 1 नंबर टू 2 नंबर 2 नंबर टू 4 नंबर जाने आने के लिए फ्लाईओवर से जाएंगे तो इतना 6 फुट का बास्केट है, 60-70 किलो वजन है, इतना एक दूसरे को पब्लिक को चलने को जगह नहीं फ्लाईओवर पे, तो हम बास्केट लेके जाएंगे तो हर एक पैसेंजर के साथ रोज नया झगड़ा पैदा हो जाएगा। इसलिए रेलवे कर्मचारी जो पुलिस है वो भी साइड में जाते हैं। 10-15 मिनट हम रेलवे क्रॉसिंग करके डब्बे के बास्केट 1 नंबर से 2 नंबर 2 नंबर से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे रेलवे की लाइन क्रॉस करते हैं। आप अगर बॉम्बे में लाइन क्रॉस करोगे तो आपको जेल में या तो फाइन भरना होता है, मगर डब्बे वालों को छुट्टी मिलती है क्योंकि हमारे पास अनाज के भरे हुए डब्बे है। कस्टमर के डब्बे में अनाज होता है। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी आरटीओ पुलिस वाला सोचता है मन में, अगर मैं डिसिप्लिन तोड़ने से डब्बे वाले के प्रॉब्लम काम में रुकावट पैदा करूं, उससे फाइन वसूल करूं, तो शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा क्योंकि उसके डब्बे का अनाज वेस्ट हो जाएगा। उसको टाइम पे डब्बा डिलीवरी करना है, इसलिए वो जानबूझ के कर रहा है। जान हथेली पे लेके रेलवे क्रॉसिंग करता है, मजबूरी से कर रहा है क्योंकि उसको फास्ट ट्रेन से जाना है, स्लो ट्रेन से जाना है। इसलिए हम मॉर्निंग में 10-15 मिनट रेलवे की भी रूल्स रेगुलेशन साइड में रखते हैं। और दूसरा एक कारण हमारा बम्बई में बिजनेस सक्सेसफुल करने का, बम्बई में 3 रूट में लोकल ट्रेन दौड़ रही है, 70 लोकल स्टेशन पे रूट चल रहे हैं। विराट टू चर्चगेट वेस्टर्न रेलवे का रूट है, कल्याण टू सीएसटी सेंट्रल रेलवे का रूट है, हर्बर रूट का रेलवे रूट है, पनवेल टू सीएसटी हो, चर्चगेट हो, वाया दादर अंधेरी बोरोली हो, वाया दादर कल्याण सीएसटी हो, वहां से भी 70 लोकल स्टेशन जाने आने के लिए बम्बई की लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है।
और वो नहीं सही चलेगी तो पूरी बम्बई नहीं चल सकती, हम भी डब्बे वाले का काम नहीं कर सकते। इसलिए जो मैंने 6 सिग्मा दिया गया है, उस 6 सिग्मा से मैं पहले लोकल ट्रेन को 2 सिग्मा देना चाहता हूँ, बाइसिकल को 2 सिग्मा देना चाहता हूँ, और सिर्फ डब्बे वालों को नेटवर्क को 2 सिग्मा लेना चाहता था। और पूरा 6 सिग्मा डब्बे वालों को टीम वर्क को मिल चुका है, क्योंकि लोकल ट्रेन बाइसिकल हमसे झगड़ा नहीं कर रही है। इसलिए 6 सिग्मा का बंटवारा इसी तरह होना चाहिए था, मगर चलो टोटल डब्बे वालों को मिल चुका है। केस स्टडी ऑफ नंदन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएशन स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी में ऑपरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म में वो आपको मैं दिखा नहीं पा सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है। कोडिंग सिस्टम है। कोडिंग सिस्टम क्या है? 4 लाख डब्बे हम कैसे जैन भाई का डब्बा जैन भाई को जाना चाहिए, शेख भाई का डब्बा शेख भाई को जाना चाहिए, इसके लिए कोडिंग सिस्टम है, वो मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा। डॉक्यूमेंट्रीज मेड बाय बीबीसी यूटीएम ए टू जेड टीवी चैनल डब्बे लोगों को डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। इंडिया के टीवी चैनल छोड़ दो, मगर विदेशी भी बहुत से टीवी चैनल वाले आते हैं, डब्बे वाले के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और अपने अपने कंट्री में दिखाते हैं। हम भी खुले आम उनको शूटिंग करने देते क्योंकि हमें कोई कॉम्पिटिशन करने की दुनिया में किसी के पास शक्ति नहीं है। इसलिए हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि डब्बे वाले लोग कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, इसलिए पूरे वर्ल्ड को हम हमारा जो मंत्र है, बिजनेस का जो सक्सेस का मीनिंग है, वो सब दुनिया के खुले आम रख सकते हैं, शूटिंग करने देते, किसी को मना नहीं करते, क्योंकि डब्बे वाले के कॉम्पिटिशन करने के पास दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं। इसलिए पूरे वर्ल्ड के टीवी चैनल अपने डॉक्यूमेंट्री लेके गए। स्कूल ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्कूल ऑफ बैंगलोर एंड अहमदाबाद, ICFS हैदराबाद, जितने भी इंडियन ग्लोबल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, सभी जगह हमें बुलाया जाता है। प्रैक्टिकल मैनेजमेंट क्या होता है? आप MBA पढ़ो या BMS पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, आप 3-4 साल कॉलेज में मैनेजमेंट के मंत्र सीखने जाते हैं। टीम वर्क हो, कंसिस्टेंसी हो, डिवोशन हो, टाइम मैनेजमेंट हो, कोडिंग हो, सप्लाई चेन हो, लॉजिस्टिक हो, वो आप पढ़ने के लिए 3 साल बिताते हैं, पैसा बिताते हैं। मगर डब्बे वाले का जो प्रैक्टिकल मैनेजमेंट है, वो हम 2 घंटे में पूरे इंस्टीट्यूट में जाके समझाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस में टीम वर्क में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कवर करते हैं। कोई पढ़े लिखे लोग ने, अनपढ़ लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोगों ने सामान्य में बहुत आसान रहते हैं। एक आदमी बोलेगा तो हमारे 100 लोग आप सुनते हैं, मगर दुनिया का जमाना उल्टा हो चुका है। 99 आदमी बोलेगा तो एक आदमी सुनने को राजी नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोग सामान्य, मुझे कोई टेंशन नहीं आता है। पढ़े लिखे लोग बहुत सारे क्वेश्चन होते, व्हाट इज दैट, दिस इज वन। जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, जो अपना नेटवर्क है, जो अपना कस्टमर केयर, अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, 12:30 का लंच टाइम कवर करना है, चाहे 60 किलोमीटर हो, चाहे 70 किलोमीटर हो, वो घर से 9 बजे उठाया हुआ डब्बा 12:30 के पहले उसको देना कैसे है, वही उतना माइंड में सोचते। बाकी दुनिया के काम ज्यादा बातें कम करते हैं। इसलिए जो भी हमारे टीम लीडर उसको मुकादम कहते हैं। मुकादम का मीनिंग है मुका यानी बिना बोलने वाला। जब मैंने 10 से काम करके ले, बिना बोल के जो 10 से काम करके लेते उसका मुकादम कहते। कभी बॉस नहीं कहते, सर नहीं कहते, मैनेजर नहीं कहते। इसलिए हमारे 800 मुकादम 800 टीम को संभालते और इतना बढ़िया नेटवर्क हमारा हो रहा है। जब हमारी जो डब्बे वाले का जो कोडिंग सिस्टम के बारे में, बम्बई ऐसी 7 मिनटों की बम्बई, 3.5 गांव की बम्बई, बम्बई के 3.5 गांव थे। हमारे फाउंडर मेंबर ने डब्बे डिलीवरी का काम शुरू किया। गिरगांव, नायगांव, माझगांव, राधा गांव था, गांव देवी, 3.5 गांव में उन्होंने 100-150 डब्बे से बिजनेस 1890 में शुरू किया था। तो डब्बे को कलर थ्रेड बांध के डब्बे का आइडेंटिफिकेशन करते थे, क्योंकि 3.5 गांव में डिलीवरी होनी थी मुंबई की। फिर टेलर के कपड़े के कटिंग्स बांधकर उन्हें पहचानने लगे। फिर ऑयल पेंट का जमाना, +, राउंड डॉट, कुछ सिंबल, कुछ ट्रायंगल, कुछ स्क्वायर, कोई जीरो, कोई ऐसे सिंबल यूज करने लगे। फिर मराठी में कोडिंग करने लगे, मगर बहुत सारे डब्बे की संख्या बढ़ने लगी, लाखों डब्बे बढ़ गए थे। इसलिए लेटेस्ट कोडिंग सिस्टम मैंने 1974 में मेरे पिताजी का बिजनेस विले पार्ला वेस्टर्न रेलवे एक लोकल स्टेशन है, उन्होंने 1920 से वो बिजनेस कर रहे थे। मैं 1974 में नया लेटेस्ट कोडिंग सिस्टम बनाई है। मेरा बिजनेस का जो स्पॉट है विले पार्ला वेस्टर्न रेलवे में, आज मैं विले पार्ला स्टेशन का टीम लीडर हूँ, वर्किंग पार्टनर हूँ। आज मेरे टीम में 26 डब्बे वाले काम कर रहे हैं। मेरे टीम में 6% मैं पकड़ के सब्स्टिट्यूट है, 20% मेरे डब्बे कलेक्ट करते हैं 9 से 10 बजे तक विले पार्ला ईस्ट, विले पार्ला वेस्ट में। इसलिए मेरे टीम के जितने भी कस्टमर के टिफिन है, सब टिफिन के ऊपर मुझे ग्रीन कलर से कोडिंग करना है कि मेरे टीम का कलर शेड ग्रीन है। मेरे टीम के जितने भी 20 डब्बे वाले सुबह 9 से 10 बजे तक डब्बे कलेक्ट करने के लिए निकलते साइकिल लेके और टिफिन के ऊपर ग्रीन कलर से कोडिंग करते। मेरे कस्टमर का रेसिडेंशियल
रहा है, इसलिए मैंने टिफिन के टॉप के ऊपर विले पार्ला स्टेशन का इनिशियल लिखा हुआ है। मैंने क्योंकि 20% रूट बनाए हुए डब्बे कलेक्ट करने के लिए, जो फर्स्ट पर्सन 40 डब्बे कलेक्ट करके लेके आएगा उसको ये अल्फाबेट रूट दिया गया है। सेकंड 40 डब्बे लेके आएगा उसको बी अल्फा रूट है। थर्ड 40 डब्बे लेके आएगा उसको सी अल्फाबेट है। जो लेफ्ट में मैंने ये अल्फाबेट लिखा हुआ है, हनुमान रोड से विले पार्ला में 40 कस्टमर के डब्बे 9 से 10 बजे तक एक पर्सन साइकिल पे लेके स्टेशन लेके आएगा, उसको ये अल्फाबेट रूट है। अभी ये पर्सन के पास समझो 40 कस्टमर के डब्बे हैं। बम्बई में तो 70 लोकल स्टेशन है। ये पर्सन 40 डब्बे लेके आएगा स्टेशन तक 9 से 10 बजे तक, पार्ला में आके छोड़ेगा। बम्बई में तो 70 लोकल स्टेशन में तो 40 डब्बे अलग अलग डेस्टिनेशन डिलीवरी करने, इसलिए हर स्टेशन को मैंने नंबर्स देके रखे हैं। 1 to 10 नंबर मैंने चर्चगेट के दिए कि चर्चगेट का एरिया बहुत बड़ा है। 11 नंबर मरीन लाइन के लिए, 12 नंबर चर्नी रोड के लिए, ऐसे स्टेशन वाइज नंबर तीनों कोडिंग मैंने ग्रीन कलर से किया कि मेरे टीम का कस्टमर है, मेरे कस्टमर ने मुझे ग्रीन कलर से कोडिंग करना है। अभी मेरे टीम के 20% 70 लोकल स्टेशन कैसे कवर कर पाएंगे 12:30 का टाइमिंग, इसलिए मेरे टीम के 20% ग्रीन कलर के डब्बे लेके विले पार्ला में 10 बजे तक लेके आते 800 डब्बे। दूसरे टीम के रेड कलर के 20% 800 डब्बे लेके आते। तीसरे टीम के 20% ब्लू कलर के डब्बे लेके आते। हर एक टीम का कंपटीशन, हर टीम का इनकम सोर्स अलग है, हर टीम के कस्टमर अलग है और 12:30 का टाइम कवर करने के लिए सब मिक्सअप होकर सप्लाई चेन में आना चाहिए। इसलिए मेरे टीम के 20%, दूसरे टीम के 20%, तीसरे टीम के 20%, 60% सब डब्बे मिक्सअप करते हैं। हर एक डब्बे वालों को एक डेस्टिनेशन रूट दिया गया है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ये पर्सन का डब्बा वाला 40 डब्बे लेके आएगा विले पार्ला स्टेशन में, 40 डब्बे आप उसके 40 डेस्टिनेशन वाइज हर एक डब्बे वालों को एक डब्बा डिलीवरी के लिए उसके पास सौंप देगा। उसका एक डेस्टिनेशन रूट होता है। पार्ला के जितने भी 60% है, ये पर्सन को चर्चगेट में नरीमन पॉइंट का सबसे डेस्टिनेशन का रूट है, उसका एक बास्केट रहता है प्लेटफॉर्म में। पार्ला में 60% में से 40 डब्बे उसके बास्केट में 40 डब्बे छोड़ के जाएंगे। इसलिए पार्ला का जो 60% है, एक पर्सन नरीमन पॉइंट जाएगा, दूसरा बैलाटगढ़ जाएगा, तीसरा सीएसटी जाएगा, कोई गेटवे ऑफ इंडिया जाएगा, कोई मरीन लाइन जाएगा, कोई चेरी रोड जाएगा, कोई थाना जाएगा, कोई कल्याण जाएगा। 60% 40 डब्बे ट्रेन पकड़ के 11:15 बजे डेस्टिनेशन स्टेशन पर डिलीवरी हो जाते हैं। अभी विले पार्ला का 40 डब्बा यूरोस्टेटर के पास नरीमन पॉइंट पे डब्बा हो जाएगा, उसको अंदर से 1% 40 डब्बे लेके आएगा, घाटकोपर से 40 डब्बे की ज्वाइंट हो जाएगा, थाना से, मुरुम से, कल्याण से, विरार से, कांजूरी से 60 रेसिडेंसी स्टेशन से 60% 40 डब्बे 11:15 बजे यूरोस्टेटर चर्चगेट के पास जमा हो जाते हैं। वहाँ जो सीनियर होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, वो सब डब्बे के ऊपर लंच का डिलीवरी रूट बनाते हैं। जैसे डब्बा कलेक्ट करने के लिए 9 से 10 बजे तक मैंने ये भी शेड्यूल बनाया कलर शेड वाइज, ऐसे लंच की डिलीवरी के लिए 60% 60 × 40 kg जिसके टिफिन लंच के 12:30 के पहले डिलीवरी करना है, इसलिए इन शॉर्ट रूट उन्होंने बनाया है। हर एक पर्सन को रूट वाइज नंबर दिया है, क्योंकि 60% को रूट बनाना है। वो 9 नंबर का जो रूट है डिलीवरी पर्सन का रूट है लंच के डब्बे। पार्ला का एक पर्सन 40 डब्बे लेके वहां जाएगा, वहां 40 साइकिल होगी, नंबर वाइज एक डब्बा अपने साइकिल पे छोड़ देगा। उसकी 9 नंबर की साइकिल होगी, पूरे बम्बई के डब्बे 9 नंबर के साइकिल में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी 10-15 मिनट में। अभी 9 नंबर जो रेड कलर से लिखा है, क्योंकि वो देखना नहीं पार्ला का टिफिन के घंटों पर जाएगा कौन से कलर से लिखा है, 9 नंबर के रूट में कौन से बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे डब्बा देना है। तो 9 नंबर के रूट में एक्सप्रेस टावर अगर बिल्डिंग होगी तो एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग का मैंने इंग्लिश से लिखा हुआ है। एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग को 10-15 फ्लोर है, तो कौन से फ्लोर पे डब्बा छोड़ना है, तो 12 फ्लोर पे डब्बा छोड़ना है। आगे कुछ एग्जाम्पल जहां मेरी खुद की नजर डूबी वो आईआईटी से नहीं कम था। टोटल पहुंच जाएगा 70 किलोमीटर, विरार टू चर्चगेट, कल्याण टू सीएसटी 70 किलोमीटर घर से हो, बैक टू एमपी बैक टू होम 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जाते हैं और हम आते हैं। 5,000 लोग मिलकर काम करते हैं, क्योंकि एक टिफिन कम से कम 4-5 आदमी के भागते हैं लोगों के पास, सही समय पर सही खाना ऑफिस जाता है, मगर इनके लिए हमारे मिलने की ओर से 5,000 लोग काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ टिफिन 2 लाख डब्बे, एक आदमी का 40 मिनट 5,000 2 लाख डब्बे। अगर 40 टिफिन नहीं होंगे तो उनका चल जाए तो कोरोना होगा। इनके लिए 2 लाख डब्बे घर से ऑफिस, एमटी बैक टू होम 2 लाख, 4 लाख डब्बे पर डे हमारे लोग आज करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो है, प्रेसिडेंट भाई जैसे यहाँ स्ट्रक्चर हक साहब है, शर्मा साहब है, फिरोज
सप्लाई एसोसिएशन के बारे में एरर रेट वन सिक्किम ट्रांजेक्शन एरर ये सब अंग्रेजी करिश्मे मेरी कोशिश जारी है पढ़ने की। आई विल ट्राई टू रीड बट आई डोंट नो व्हाट इज एरर बट सबसे एरर इज हॉरर एंड डोंट नो द मिरर। 6 सिग्मा पर मंथ 9.9999 हमें 6 सिग्मा सभी मिला है उनके बारे में सीधे बड़ा हम शुक्रगुजार हैं। टेक्नोलॉजी का कंपनी टेक्नोलॉजी घर है ना ये टेक्नोलॉजी पर मगर हमारे टेक्नोलॉजी बाइसिकल लोकल ट्रेन ह्यूमन पावर एंड आई हैव होल कंप्यूटर। तो इसमें हमारा कवर अभी टोपी में काम करते समय तो उन्हें भी 50 फाइन है। कई हमारे उसूल पुराने हैं और पुराने उसूल हम आज भी काम करते हैं। 50 करोड़ का हमारा टर्नओवर है सर 500 SSL में मंथली आप लोग टिफिकेट पका देते हैं महीने का 30 दिन का और 50 करोड़ का हमारा टर्नओवर है। नो स्ट्राइक रिकॉग्निशन स्ट्राइक विद सुसाइड बस हमने काम हमारा ईश्वर है। बॉम्बे में स्ट्राइक हुआ मिले थी वो स्ट्राइक होने के बाद मेरे बंद बढ़ गई क्यों हुआ किसने क्या हुआ बात अलग था मगर स्ट्राइक होने के बाद हमारे लोग घर बैठ गए खाने के लिए मोहताज काम की तकलीफ काम पे जाओ मगर स्ट्राइक के बारे में कभी ना सोचो। अर्निंग 10,000 पर मंथ 9,000 इतना तो काफी नहीं मगर समाज में सोसाइटी में रहना है ना सब झुका के जियो ना मुंह छुपा के जितना मिलता है उसमें खुश रहो ये हम लोग कहते हैं। दिवाली बोनस एक महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं। डिसिप्लिन के बारे में जॉब को डेली ड्यूटी ऐसे हम तो यहाँ कमिश्नर साहब क्या है मंत्री तो नहीं है मगर सुबह 9 से 6 बजे तक कोई लेंगे तो उन्हें हाजत फाइन है। टोपी के बारे में कहा आईडी कार्ड के बारे में कहा नो नोटिस। अगर हम टीम में काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ आपकी खबर मुझे मेरी खबर आपको चाहिए तभी काम सफल होता है। बहने हमारी भिको भाई आनंद भाई पार्वती भाई लक्ष्मी भाई इसे देखिए स्मार्ट हार्ड वर्क मगर हार्ड है स्मार्ट वो तो इंसान भी ऐसा आता है राह में छाए में छोड़ देता है। कभी कभी हमारे भाई साइकिल ट्रक के नीचे आते हैं ट्रेन जाते समय हाथ से पटरे भी गिरते हैं एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद बाहर में भर्ती होता है घर की जिम्मेदारी घरों पर आकर पड़ती है लोग आते हैं मैं हम मगर क्या है कोई किसी का नहीं छुट्टी नाते हैं ना दो गया राशन कोई लाके देता नहीं भाषण दे चले जाते किसी भले इंसान ने कहा है पूरा पैसा तो नहीं है पैसा खुला तो नहीं है मगर खुदा से कम नहीं है आज के समय में इसलिए काम करना चाहिए को हमारी मीटिंग होती है 15 को ग्रुप को बोला जाते हैं भाई देखिए आज तक ये बहनों का पिता पति भाई लड़का अपने साथ काम करता था आज उनके ऊपर आफत आई है तो जितना पैसा आपको मिलेगा उतना पैसा उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें साइकिल चलाना नहीं सिर पर वजन लेके चलना नहीं नजदीक का एरिया देने का जिनका पेमेंट ज्यादा है वो बहन हमारी टिफिन लेके जाएंगी और काम करेंगी और पैसा लेगी और उनके बाल बच्चे पढ़ाएंगी और घर भी चलाएंगे। ऐसे हम लोगों को कहते हैं यहाँ समय की जगह थोड़ी तकलीफ है इसके लिए मैं भी हैंडओवर करता हूँ रघुनाथ जी के पास। मैं जय हिंद जय पंजाब। सुस्वागतम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट एल्डर्स वुड कलीग्स एंड यंगस्टर्स। आज हमें शेपिंग यंग माइंड्स प्रोग्राम में बुलाकर हमारा स्थापन जानने के लिए आप सभी आतुर होंगे। आज के प्रोग्राम के आदरणीय प्रेसिडेंट एहसान उल हक साहब, सेक्रेटरी विशाल शर्मा सर और हमारे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के डायरेक्टर संजय ग्रोवर साहब, आए सभी प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, आए हुए गेस्ट स्पीकर्स, देवयार सज्जनों, सबको डब्बावाला एसोसिएशन की तरफ से आपके बायो लाइफ के लिए शुभेच्छा और सदिच्छा। आईमा और जालंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा जो प्रोग्राम किया है उसके लिए कहना चाहता हूँ मुसीबतों में शराफतों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबतों में शराफतों की शराफत कम नहीं होती। होने तो दुनिया में बहुत सारे मैनेजमेंट एसोसिएशन फिर भी आईमा और जालंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन की कीमत कम नहीं होती। हमारे डब्बे वालों की कथा व्यथा और यशोगाथा हमेशा मानव सेवा के साथ चलती आ रही है, भविष्य में चलने वाली है। हम सब डब्बे वाले पश्चिम महाराष्ट्र से वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जो हर वर्क करने के लिए चाहे शक्ति चाहे हम छत्रपति शिवाजी महाराज से सीख चुके हैं। बिजनेस करने के लिए जो नम्रता चाहे वो साधु संतों से सीख चुके हैं।
यानी शक्ति और भक्ति के मिलन से इतना बढ़िया नेटवर्क हमारा हो रहा है। और हमारा बिलीफ है वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड। काम करते समय जो 5,000 डब्बे वाले 800 ग्रुप में काम कर रहे हैं, हर एक ग्रुप का कंपटीशन, हर एक ग्रुप के कस्टमर अलग है, हर एक ग्रुप का इनकम सोर्स अलग है। मगर बंबई के 70 लोकल स्टेशन लंच टाइम 12:30 का कवर करने के लिए सब मिलजुल के सप्लाई चेन में आते हैं और इतना हार्ड वर्क करते हैं। टीम वर्क बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। हर एक डब्बे वाले का टारगेट होता है 35-40 टिफिन्स और 35-40 टिफिन्स का वेट होता है 60-65 kg। उस सर पे लेके दौड़ना है, साइकिल पे लेके दौड़ना है, ट्रेन के साथ दौड़ना है, दौड़ते हुए बम्बे के साथ दौड़ना है। और इतना हार्ड वर्क करने की जिसके पास शक्ति है वही डब्बा वाला का काम कर सकता है। ऐसे बम्बई में 5,000 डब्बे वाले के 800 टीम 70 लोकल स्टेशन में टीम वर्क होता है। और दूसरा हमारा यूजफुल व्हीकल है, साइकिल है। साइकिल यूज करने से 0% फ्यूल है, 0% पोल्यूशन है, 0% इन्वेस्टमेंट है, 0% मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, 0% डिस्प्यूट्स है। और इसलिए जो 99.997% परफॉर्मेंस मिला है वो केवल डब्बे वाले से नेटवर्क से हमें मिल नहीं रहा, उसके साथ साथ बाइसिकल का बड़ा योगदान है। आज तक इंडिया गवर्नमेंट ने साइकिल चलाने के लाइसेंस कंपलसरी किया नहीं है, साइकिल खरीदने के लिए आरटीओ रजिस्ट्रेशन भी किया नहीं है। और बम्बई में इतनी ट्रैफिक होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, जब हम कस्टमर के घर से डब्बे कलेक्ट करते हैं 9 से 10 बजे तक हमको स्टेशन में पहुंचना है, इतनी ट्रैफिक जाम होते कि आप 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में फंस जाओगे कोई व्हीकल लेके जाओगे तो। मगर अच्छा हुआ इंडिया गवर्नमेंट ने साइकिल के लिए लाइसेंस नहीं रखा है। और डब्बे वाले जब मॉर्निंग में घर से डब्बे कलेक्ट करते हैं 35-40 टिफिन कलेक्ट करने के लिए हर घर में जाते हैं और 10:15 बजे तक उसको रेसिडेंशियल स्टेशन पे पहुंचना होता है 5-6 किलोमीटर दूरी से। अगर लाइसेंस होता तो हम नो एंट्री में घुस नहीं सकते थे, सिग्नल नहीं तोड़ सकते थे। ट्रैफिक जाम होता हम बाइसिकल साइकिल फुटपाथ से लेके भागते हैं। बम्बई की जो पुलिस है, आरटीओ पुलिस है, सिटी पुलिस है, रेलवे पुलिस है, सब हमें देख रहे हैं रोज डब्बे वाले डिसिप्लिन तोड़ रहा है। मगर करे क्या, 40 कस्टमर के डब्बे अनाज में भरे होते हैं, उसको 12:30 के पहले 60-70 किलोमीटर डेस्टिनेशन जाना है ट्रेन से और उसको 12:30 का लंच टाइम कवर करना है। इसलिए हम मॉर्निंग में खाली 1 घंटा रूल्स एंड रेगुलेशन साइड में रहते हैं, नो एंट्री में घुस सकते हैं, सिग्नल तोड़ सकते हैं, फुटपाथ से साइकिल लेके जाते हैं। रेलवे की पटरियां 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 4 नंबर जाने आने के लिए फ्लाईओवर से जाएंगे तो इतना 6 फुट का बास्केट है, 60-70 किलो वजन है, इतना एक दूसरे को पब्लिक को चलने को जगह नहीं फ्लाईओवर पे, तो हम बास्केट लेके जाएंगे तो हर एक पैसेंजर के साथ रोज नया झगड़ा पैदा हो जाएगा। इसलिए रेलवे कर्मचारी जो पुलिस है वो भी साइड में जाते हैं। 10-15 मिनट हम रेलवे क्रॉसिंग करके डब्बे के बास्केट 1 नंबर से 2 नंबर 2 नंबर से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे रेलवे की लाइन क्रॉस करते हैं। आप अगर बम्बई में लाइन क्रॉस करोगे तो आपको जेल में या तो फाइन भरना होता है, मगर डब्बे वालों को छुट्टी मिलती है क्योंकि हमारे पास अनाज के भरे हुए डब्बे है। कस्टमर के डब्बे में अनाज होता है। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी आरटीओ पुलिस वाला सोचता है मन में, अगर मैं डिसिप्लिन तोड़ने से डब्बे वाले के काम में रुकावट पैदा करूं, उससे फाइन वसूल करूं, तो शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा क्योंकि उसके डब्बे का अनाज वेस्ट हो जाएगा। उसको टाइम पे डब्बा डिलीवरी करना है, इसलिए वो जानबूझ के कर रहा है। जान हथेली पे लेके रेलवे क्रॉसिंग करता है, मजबूरी से कर रहा है क्योंकि उसको फास्ट ट्रेन से जाना है, स्लो ट्रेन से जाना है। इसलिए हम मॉर्निंग में 10-15 मिनट रेलवे की भी रूल्स रेगुलेशन साइड में रखते हैं। और दूसरा एक कारण हमारा बम्बई में बिजनेस सक्सेसफुल करने का, बम्बई में 3 रूट में लोकल ट्रेन दौड़ रही है, 70 लोकल स्टेशन पे रूट चल रहे हैं। विराट टू चर्चगेट वेस्टर्न रेलवे का रूट है, कल्याण टू सीएसटी सेंट्रल रेलवे का रूट है, हर्बर रूट का रेलवे रूट है, पनवेल टू सीएसटी हो, चर्चगेट हो, वाया दादर अंधेरी बोरोली हो, वाया दादर कल्याण सीएसटी हो, वहां से भी 70 लोकल स्टेशन जाने आने के लिए बम्बई की लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है। और वो नहीं सही चलेगी तो पूरी बम्बई नहीं चल सकती, हम भी डब्बे वाले का काम नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हमें 6 सिग्मा दिया गया है, उस 6 सिग्मा से मैं पहले लोकल ट्रेन को 2 सिग्मा देना चाहता हूँ, बाइसिकल को 2 सिग्मा देना चाहता हूँ और सिर्फ डब्बे वालों को नेटवर्क को 2 सिग्मा लेना चाहता था। और पूरा 6 सिग्मा डब्बे वालों को टीम वर्क को मिल चुका है क्योंकि लोकल ट्रेन बाइसिकल हमसे झगड़ा नहीं कर रही है। इसलिए 6 सिग्मा का बंटवारा इसी तरह होना चाहिए था, मगर चलो फुटबॉल डब्बे वालों को मिल चुका है। केस स्टडी ऑफ उत्तर मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएशन स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी, में ऑपरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म में तो आपको मैं दिखा नहीं पा सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है। कोडिंग सिस्टम है, कोडिंग सिस्टम क्या है, 4 लाख डब्बे हम कैसे जैन भाई का डब्बा जैन भाई को जाना चाहिए, शेख भाई का डब्बा शेख भाई को जाना चाहिए, इसके लिए कोडिंग सिस्टम है, वो मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा।
डॉक्यूमेंट्रीज मेड बाय BBC, UTF, A to Z टीवी चैनल डब्बे वाले के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। इंडिया के टीवी चैनल छोड़ दो, मगर विदेशी भी बहुत से टीवी चैनल वाले आते हैं, डब्बे वाले के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और अपने अपने कंट्री में दिखाते। हम भी खुले आम उनको शूटिंग करने देते, क्योंकि हमें कोई कंपटीशन करने की दुनिया में किसी के पास शक्ति नहीं है। इसलिए हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि डब्बे वाले का कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए पूरे वर्ल्ड को हम हमारा जो मंत्र है, बिजनेस का जो सक्सेस का मीनिंग है, वो सब दुनिया के खुले आप रख सकते हैं। शूटिंग करने देते, किसको मना नहीं करते, क्योंकि डब्बे वाले के कंपटीशन करने के पास दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं। इसलिए पूरे वर्ल्ड के टीवी चैनल अपने डॉक्यूमेंट्री लेके गए। स्कूल ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस स्कूल ऑफ बैंगलोर एंड अहमदाबाद, ICFS हैदराबाद, जितने भी इंडियन ग्लोबल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, सभी जगह हमें बुलाया जाता है। प्रैक्टिकल मैनेजमेंट क्या होता है? आप MBA पढ़ो या BMS पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, आप 3-4 साल कॉलेज में मैनेजमेंट के मंत्र सीखने जाते हैं। टीम वर्क हो, कंसिस्टेंसी हो, डिवोशन हो, टाइम मैनेजमेंट हो, कोडिंग हो, सप्लाई चेन हो, लॉजिस्टिक हो, वो आप पढ़ने के लिए 3 साल बिताते हैं, पैसा बिताते हैं। मगर डब्बे वाले का जो प्रैक्टिकल मैनेजमेंट है, वो हम 2 घंटे में पूरे इंस्टीट्यूट में जाके समझाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस में टीम वर्क में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कवर करते हैं। कोई पढ़े लिखे लोग ने, अनपढ़ लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोगों ने सामान्य में बहुत आसान रहते हैं। एक आदमी बोलेगा तो हमारे 100 लोग आप सुनते हैं, मगर दुनिया का जमाना उल्टा हो चुका है। 99 आदमी बोलेगा तो एक आदमी सुनने को राजी नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोग सामान्य, मुझे कोई टेंशन नहीं आता है। पढ़े लिखे लोग बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज दैट एंड दिस इज व्हाट। जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, जो अपना नेटवर्क है, जो अपना कस्टमर केयर, अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, 12:30 का लंच टाइम कवर करना है, चाहे 60 किलोमीटर हो, चाहे 70 किलोमीटर हो, वो घर से 9 बजे उठाया हुआ डब्बा 12:30 के पहले उसको देना कैसे है, वही उतना माइंड में सोचते। बाकी दुनिया के काम ज्यादा बातें कम करते हैं। इसलिए जो भी हमारे टीम लीडर उसको मुकादम कहते हैं। मुकादम का मीनिंग है मुका यानी बिना बोलने वाला। जब मैंने 10 से काम करके ले, बिना बोल के जो 10 से काम करके लेते उसका मुकादम कहते। कभी बॉस नहीं कहते, सर नहीं कहते, मैनेजर नहीं कहते। इसलिए हमारे 800 मुकादम, 800 टीम को संभालते और इतना बढ़िया नेटवर्क हमारा हो रहा है। जब हमारी जो डब्बे वाले का जो कोडिंग सिस्टम के बारे में, बम्बई ऐसी 7 घंटों की बम्बई, 3.5 गांव की बम्बई, बम्बई के 3.5 गांव थे। हमारे फाउंडर मेंबर ने डब्बे डिलीवरी का काम शुरू किया। गिरगांव, नायगांव, माझगांव, राधा गांव था गांव देवी। 3.5 गांव में उन्होंने 100-150 डब्बे से बिजनेस 1890 में शुरू किया था। तो डब्बे को कलर थ्रेड बांध के डब्बे का आइडेंटिफिकेशन करते थे, क्योंकि 3.5 गांव में डिलीवरी होनी थी मुंबई से। फिर टेलर के कपड़े के कटिंग्स बांधकर उन्हें पहचानने लगे। फिर ऑयल पेंट का जमाना, +, राउंड डॉट, कुछ सिंबल, कुछ ट्रायंगल, कुछ स्क्वायर, कोई जीरो, कोई ऐसे सिंबल यूज करने लगे। फिर मराठी में कोडिंग करने लगे। मगर बहुत सारे डब्बे की संख्या बढ़ने लगी, लाखों डब्बे बढ़ गए थे। इसलिए लेटेस्ट कोडिंग सिस्टम मैंने 1974 में, मेरे पिताजी का बिजनेस विले पार्ला वेस्टर्न रेलवे एक लोकल स्टेशन है, उन्होंने 1920 से वो बिजनेस कर रहे थे। मैं 1974 में नया लेटेस्ट कोडिंग सिस्टम बनाई है। मेरा बिजनेस का जो स्पॉट है विले पार्ला वेस्टर्न रेलवे में, आज मैं डब्बे विले पार्ला स्टेशन का टीम लीडर हूँ, वर्किंग पार्टनर हूँ। आज मेरे टीम में 26 डब्बे वाले काम कर रहे हैं। मेरे टीम में 6% मैं पकड़ के सब्स्टिट्यूट है। 20% मेरे डब्बे कलेक्ट करते हैं 9 से 10 बजे तक विले पार्ला ईस्ट, विले पार्ला वेस्ट में। इसलिए मेरे टीम के जितने भी कस्टमर के टिफिन है, सब टिफिन के ऊपर मुझे ग्रीन कलर से कोडिंग करना है कि मेरे टीम का कलर शेड ग्रीन है। मेरे टीम के जितने भी 20 डब्बे वाले सुबह 9 से 10 बजे तक डब्बे कलेक्ट करने के लिए निकलते साइकिल लेके, और टिफिन के ऊपर ग्रीन कलर से कोडिंग करते। मेरे कस्टमर का रेसिडेंशियल स्टेशन विले पार्ला है, इसलिए मैंने टिफिन के टॉप के ऊपर विले पार्ला स्टेशन का इनिशियल लिखा हुआ है। मेरे टीम के 20% रूट बनाए हुए डब्बे कलेक्ट करने के लिए। जो फर्स्ट पर्सन 40 डब्बे कलेक्ट करके लेके आएगा उसको ये अल्फाबेट रूट दिया गया है। सेकंड 40 डब्बे लेके आएगा उसको बी अल्फाबेट है। थर्ड 40 डब्बे लेके आएगा उसको सी अल्फाबेट है। जो लेफ्ट में मैंने ये अल्फाबेट लिखा हुआ है। हनुमान रोड से विले पार्ला में 40 कस्टमर के डब्बे 9 से 10 बजे तक एक पर्सन साइकिल पे लेके स्टेशन लेके आएगा, उसको ये अल्फाबेट रूट है। अभी ये पर्सन के पास समझो 40 कस्टमर के डब्बे हैं। बम्बई का तो 70 लोकल स्टेशन है। ये पर्सन 40 डब्बे लेके आएगा स्टेशन तक 9 से 10 बजे तक, पार्ला में आके छोड़ेगा।
बम्बई में तो 70 लोग स्टेशन में तो 40 जगह अलग अलग डेस्टिनेशन डिलीवरी करने, इसलिए हर स्टेशन को मैंने नंबर्स देके रखे हैं। 1 to 10 नंबर मैंने चर्चगेट के दिए कि चर्चगेट का एरिया बहुत बड़ा है। 11 नंबर मरीन लाइन के लिए, 12 नंबर चर्नी रोड के लिए, ऐसे स्टेशन वाइज नंबर तीनों कोडिंग मैंने ग्रीन कलर से किया कि मेरे टीम का कस्टमर है, मेरे कस्टमर ने मुझे ग्रीन कलर से कोडिंग करना है। अभी मेरे टीम के 20% 70 लोग स्टेशन कैसे कवर कर पाएंगे 12:30 का टाइमिंग, इसलिए मेरे टीम के 20% ग्रीन कलर के डब्बे लेके विजय पार्लर में 10 बजे तक लेके आते 800 डब्बे, दूसरे टीम के रेड कलर के 20% 800 डब्बे लेके आते, तीसरे टीम के 20% ब्लू कलर के डब्बे लेके आते। हर एक टीम का कंपटीशन, हर टीम का इनकम सोर्स अलग है, हर टीम के कस्टमर अलग है और 12:30 का टाइम कवर करने के लिए सब मिक्सअप होकर सप्लाई चेन में आना चाहिए। इसलिए मेरे टीम के 20%, दूसरे टीम के 20%, तीसरे टीम के 20%, 60% सब डब्बे मिक्सअप करते हैं। हर एक डब्बे वालों को एक डेस्टिनेशन रूट दिया गया है, फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ये पर्सन का डब्बा वाला 40 डब्बे लेके आएगा विजय पार्लर स्टेशन में, 40 डब्बे आप उसके 40 डेस्टिनेशन वाइज हर एक डब्बे वालों को एक डब्बा डिलीवरी के लिए उसके पास सौंप देगा। उसका एक डेस्टिनेशन रूट होता है। पार्लर के जितने भी 60% है, ई पर्सन को चर्चगेट में नरीमन पॉइंट का सबसे डेस्टिनेशन का रूट है, उसका एक बास्केट रहता है प्लेटफॉर्म पे। पार्लर में 60% में से 40 डब्बे उसके बास्केट में 40 डब्बे छोड़ के जाएंगे। इसलिए पार्लर का जो 60% है, एक पर्सन नरीमन पॉइंट जाएगा, दूसरा बैराटगढ़ जाएगा, तीसरा श्रेष्ठ जाएगा, कोई गेटवे ऑफ इंडिया जाएगा, कोई मरीन लाइन जाएगा, कोई चर्नी रोड जाएगा, कोई थाना जाएगा, कोई कल्याण जाएगा। 60% 40 डब्बे ट्रेन पकड़ के 11:15 बजे डेस्टिनेशन स्टेशन पर डिलीवरी हो जाते हैं। अभी विले पार्लर का 40 डब्बा यूरोस थिएटर के पास नरीमन पॉइंट पे डब्बा हो जाएगा, उसको अंदर से 1% 40 डब्बे लेके आएगा, घाटकोपर से 40 डब्बे की ज्वाइन हो जाएगा, आना से, मुलुंड से, कल्याण से, विरार से, कांजूली से 60 रेसिडेंशियल स्टेशन से 60% 40 डब्बे 11:15 बजे यूरोस थिएटर चर्चगेट के पास जमा हो जाते हैं। वहाँ जो सीनियर होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, वो सब डब्बे के ऊपर लंच का डिलीवरी रूट बनाते हैं। जैसे डब्बा कलेक्ट करने के लिए 9 से 10 बजे तक मैंने एबीसीडी रूट बनाया कलर शेड वाइज, ऐसे लंच की डिलीवरी के लिए 60% 60 × 40 के जितने टिफिन लंच के 12:30 के पहले डिलीवरी करना है, इसलिए इन शॉर्ट रूट उन्होंने बनाया है। हर एक पर्सन को रूट वाइज नंबर दिया है, क्योंकि 60% का रूट बनाना है। वो 9 नंबर का जो रूट है डिलीवरी पर्सन का रूट है लंच के डब्बे, पार्लर का एक पर्सन 40 डब्बे लेके वहां जाएगा, वहां 40 साइकिल होगी, नंबर वाइज एक एक डब्बा अपने साइकिल पे छोड़ देगा। उसकी 9 नंबर की साइकिल होगी, पूरे बम्बई के डब्बे 9 नंबर के साइकिल में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी 10-15 मिनट में। अभी 9 नंबर जो रेड कलर से लिखा है, क्योंकि वो देखना नहीं पार्लर का टिफिन के घंटों पर क्या कौन से कलर से लिखा है, 9 नंबर के रूट में कौन से बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे डब्बा देना है। तो 9 नंबर के रूट में एक्सप्रेस टावर अगर बिल्डिंग होगी तो एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग को हमने इंग्लिश से लिखा हुआ है। एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग को 10-15 फ्लोर है, तो कौन से फ्लोर पे डब्बा छोड़ना है, तो 12 फ्लोर पे डब्बा छोड़ना है। आगे कुछ एग्जाम्पल, 5 नंबर का डिलीवरी पर्सन आपका रूट में कलेक्ट करेगा, एयर इंडिया बिल्डिंग में 12वें मंजिल में लड़के लिए छोड़ देगा। आगे वाला ग्रीन कलर शेयर ग्रुप है, डी नंबर का पर्सन डब्बा कलेक्ट कर रहा है, घाटकोपर उसका रेसिडेंशियल स्टेशन है सेंट्रल रेलवे का, 13 नंबर डेस्टिनेशन स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे में ग्रैंड रोड के लिए, ग्रैंड रोड में डब्बा डिलीवरी होने के बाद 2 नंबर का डिलीवरी पर्सन आपके रूट में कलेक्ट करेगा, पंचरत्न बिल्डिंग में 9th फ्लोर में लड़के लिए छोड़ देगा। ऐसी कोडिंग सिस्टम है। 5 नंबर का डिलीवरी पर्सन आपका रूट में कलेक्ट करेगा, एयर इंडिया बिल्डिंग में 12वें मंजिल में लड़के लिए छोड़ देगा। आगे वाला ग्रीन कलर शेयर ग्रुप है, डी नंबर का पर्सन डब्बा कलेक्ट कर रहा है, घाटकोपर उसका रेसिडेंशियल स्टेशन है सेंट्रल रेलवे का, 13 नंबर डेस्टिनेशन स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे में ग्रैंड रोड के लिए, ग्रैंड रोड में डब्बा डिलीवरी होने के बाद 2 नंबर का डिलीवरी पर्सन आपके रूट में कलेक्ट करेगा, पंचरत्न बिल्डिंग में 9th फ्लोर में लड़के लिए छोड़ देगा। ऐसी कोडिंग सिस्टम है। मगर पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होती है, स्टैमिना तो स्ट्रांग होता है मगर मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। पढ़े लिखे लोग नोट कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, अटक जाएगा तो ओपन करके यूज करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग क्या नोट करेंगे, क्या फीड करेंगे, उनको तो बाहर करके काम करना है। और कस्टमर के होम और कस्टमर के डेस्टिनेशन स्टेशन, डिलीवरी पर्सन का रूट नंबर, बिल्डिंग का इनिशियल, फ्लोर नंबर सब बाहर करके काम होता है। अगर अंधे लोग ब्राइल लिपि पढ़ सकते हैं तो अनपढ़ लोग क्यों नहीं 40 डब्बे की डिलीवरी करेंगे। इसलिए इतना बढ़िया नेटवर्क हमारा चल रहा है। ये मेरे पास MBA JMS MMS होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट आते हैं, उन्होंने फ्लो लॉजिक बनाया। कोडिंग सिस्टम जानने के बाद फ्लो लॉजिक क्या होता है उसके बारे में, कलेक्शन फ्रॉम होम्स, पॉइंट ऑफ एग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग, रेसिडेंशियल स्टेशन पे अलग अलग टीम पे एबीसीडी पर्सन
40 डिब्बे लेके आते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, जोन फॉर डेस्टिनेशन चैनल रोड के लिए 12 नंबर के डिब्बे ट्रेन से पहुंच जाते हैं, चेलगेट पे 10% 10 पर डिब्बे लेके जा रहे हैं, लोड करने के लिए 14 नंबर के डिब्बे डिलीवरी होते हैं, वह 1 to 60% की टीम तैयार हो जाती है, वो 12:30 के पहले डिब्बे डिलीवरी हो जाते हैं, फिर 30 to 1:30 लंच टाइम होता है और 1:30 के बाद सेम प्रोसीजर बैक डाउन शाम को रिटर्न डिब्बे आते हैं शाम को 6 बजे तक। ये साइकिल है डिब्बे की 40 डिब्बे कैसे लोड करते हैं, बाजू में डिब्बे वाला कोडिंग करता है, जो कोडिंग करना उसका कंपलसरी, क्योंकि उसको जो डब्बा उसको कलेक्ट करना है उसकी जवाबदारी उसी को है, उसी का पैसा उसी को मिलता है, उसी की कंप्लेंट उसी को सुनना है। इसलिए हमारे कस्टमर अगर बर्तन साफ करेंगे तो डब्बा क्यों नहीं साफ करेंगे, डब्बा साफ करेंगे एक कोडिंग नंबर निकल जाएगा, कोडिंग नंबर निकलेगा, गलत डेस्टिनेशन डब्बा डिलीवर हो जाएगा। इसलिए पहले डब्बे को कोडिंग करो फिर डब्बा सप्लाई करना आना चाहिए। हमारे डिब्बे वाले मॉर्निंग में उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, साइकिल की पूजा करते हैं, कस्टमर के दरवाजे में जाते हैं, वॉचमैन को बोलते हैं सब मेरे साइकिल के ऊपर ध्यान रखो। डब्बे वाले कभी लिफ्ट में जाएंगे नहीं, बिल्डिंग में अपस्टेयर चढ़ के जाता हूँ, मगर पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होती है, स्टैमिना तो स्ट्रांग होता है मगर मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। पढ़े लिखे लोग नोट कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, अटक जाएगा तो ओपन करके यूज करेंगे, जो पढ़े लिखे लोग क्या नोट करेंगे, क्या फीड करेंगे, उनको तो बाहर करके काम करना है। और द कस्टमर के होम्स और द कस्टमर के डेस्टिनेशन स्टेशन डिलीवरी पर्सन का रूट नंबर, बिल्डिंग का इनिशियल फ्लोर नंबर सब बाहर करके काम होता है। अगर आगे लोग ब्रांड लिपि पढ़ सकते हैं तो अनपढ़ लोग क्यों नहीं 40 डिब्बे की डिलीवरी करेंगे। इसलिए इतना बढ़िया नेटवर्क हमारा चल रहा है। ये मेरे पास MBA JMS एमएस होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट आते हैं, उन्होंने फ्लो लॉजिक बनाया, कोडिंग सिस्टम जानने के बाद फ्लो लॉजिक क्या होता है उसके बारे में, कलेक्शन फ्रॉम होम्स, पॉइंट ऑफ एग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग, रेसिडेंशियल स्टेशन पे अलग अलग डिब्बे एवरी पर्सन 40 डिब्बे लेके आते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, जोन फॉर डेस्टिनेशन चैनल रोड के लिए 12 नंबर के डिब्बे ट्रेन से पहुंच जाते हैं, चेलगेट पे 10% 10 पर डिब्बे लेके जा रहे हैं, लोड करने के लिए 14 नंबर के डिब्बे डिलीवरी होते हैं, वह 1 to 60% की टीम तैयार हो जाती है, वो 12:30 के पहले डिब्बे डिलीवरी हो जाते हैं, फिर 30 to 1:30 लंच टाइम होता है और 1:30 के बाद सेम प्रोसीजर बैक डाउन शाम को रिटर्न डिब्बे आते हैं शाम को 6 बजे तक। ये साइकिल है डिब्बे की 40 डिब्बे कैसे लोड करते हैं, बाजू में डिब्बे वाला कोडिंग करता है, जो कोडिंग करना उसका कंपलसरी, क्योंकि उसको जो डब्बा उसको कलेक्ट करना है उसी की जवाबदारी उसी को है, उसी का पैसा उसी को मिलता है, उसी की कंप्लेंट उसी को सुनना है। इसलिए हमारे कस्टमर अगर बर्तन साफ करेंगे तो डब्बा क्यों नहीं साफ करेंगे, डब्बा साफ करेंगे एक कोडिंग नंबर निकल जाएगा, कोडिंग नंबर निकलेगा, गलत डेस्टिनेशन डब्बा डिलीवर हो जाएगा। इसलिए पहले डब्बे को कोडिंग करो फिर डब्बा सप्लाई करना आना चाहिए। हमारे डिब्बे वाले मॉर्निंग में उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, साइकिल की पूजा करते हैं, कस्टमर के दरवाजे में जाते हैं, वॉचमैन को बोलते हैं सब मेरे साइकिल के ऊपर ध्यान रखो। डब्बे वाले कभी लिफ्ट में जाएंगे नहीं, बिल्डिंग में अपस्टेयर चढ़ के जाते रखो, आज बाजू की सोसाइटी में जाके वहां से डब्बे लेके आऊंगा, अपस्टेयर चढ़ जाते जल्दी से अपस्टेयर चढ़ूंगा, पास साइकिल चलाऊंगा, आप जल्दी डब्बा भर के रखो, डब्बा वाला आ जाता है, डब्बा लेके जाता है, मतलब दूसरे दिन कस्टमर के पास डब्बा वाला पहुंच जाता है, मैडम को ईगो हो जाता है, मैं सिक्योरिटी पेमेंट देती हूँ, डब्बा वाला मेरा डब्बा दाल चावल बनती है, डब्बा वाला को बेचते हाथ हो जाता है। और कस्टमर को ऐसे आदत लग जाएगी तो मैं लंच का डब्बा डिनर से पहले डिलीवरी कर सकूंगा। इसलिए एक कस्टमर को सबक सिखानी चाहिए। दूसरे दिन वो बिल्डिंग के जितने भी भरे हुए डब्बे हैं सब कलेक्ट करके साइकिल में लोड करके जा रहा था, मैडम देखिए डब्बा वाला मेरा डब्बा तैयार करो, डब्बा भर के रखो, आज बाजू की सोसाइटी में जाके वहां से डब्बे लेके आऊंगा, आप जल्दी जाते जल्दी से आपके पास साइकिल चलाऊंगा, आप जल्दी डब्बा भर के रखो, डब्बा वाला आ जाता है, डब्बा लेके जाता है, मतलब दूसरे दिन कस्टमर के पास डब्बा वाला पहुंच जाता है, मैडम को ईगो हो जाता है, मैं सिक्योरिटी पेमेंट देती हूँ, डब्बा वाला मेरा डब्बा दाल चावल बनती है, डब्बा वाला को बेचते हाथ हो जाता है। और कस्टमर को ऐसे आदत लग जाएगी तो मैं लंच का डब्बा डिनर से पहले डिलीवरी कर सकूंगा। इसलिए एक कस्टमर को सबक सिखानी चाहिए। दूसरे दिन वो बिल्डिंग के जितने भी भरे हुए डब्बे हैं सब कलेक्ट करके साइकिल में लोड करके जा रहा था, मैडम देखिए डब्बा वाला मेरा डब्बा बहुत देखते सबके करके आज के लड़ा सुने हैं बाबा का डब्बा, वो आगे वाले डब्बा में इंक्वायरी करते हैं, अरे डब्बा मैंने डब्बा क्यों नहीं लेके आया, आने का डब्बा तो खाना से आता है, वो रिक्वेस्ट करते हैं बॉस को पैसा मैं खाना से आता हूँ, घर में फोन करो भाभी को आपका डब्बा आया था मुझे भी पता नहीं, बस घर में फोन करे भाभी को जरूरत नहीं पड़ सकती है, मैंने टाइम पे डब्बा दिया इसलिए भूखा रह गया। इसलिए
दिन भर बॉस भूखे रहते हैं, बॉस भूखे रहते हैं, खाते जानकारी नहीं सबको बाहर में डांटते हो या क्लिनिक में देखे नहीं जाते। नेक्स्ट डे फिर से डब्बा बिल्डिंग में जाते मैडम डेढ़ बजे से मेरे डब्बा के हाथ में बॉस देखते सबके करके आज के घर में आया बाबा का डब्बा वो आगे वाले डब्बा की इंक्वायरी करते हैं। अरे बॉस मैं डब्बा क्यों नहीं लेके आया? आने का डब्बा वाला खाना से आता है सबके डिलीवरी करने वो रिक्वेस्ट करते हैं बॉस को पैसा मैं खाना से आता हूँ घर में फोन करो भाभी को आपका डब्बा आया था कि मुझे भी पता नहीं। बस घर में फोन करे भाभी को चुप नहीं बोल सकती है मैंने टाइम पे डब्बा दिया कितने भूखा रह गया। इसलिए दिन भर बॉस भूखे रहते हैं, बॉस भूखे रहते हैं, खाते जानकारी नहीं सबको बाहर में डांटते हो या क्लिनिक में देखे नहीं जाते। नेक्स्ट डे फिर से डब्बा बिल्डिंग में जाते मैडम डेढ़ बजे से मेरे डब्बा के हाथ में टाइम मैनेजमेंट है। हम इसी तरह कस्टमर के टाइम से डब्बा भरने की आदत देते हैं। ये मुंबई के लोकल ट्रेन की जानकारी आपको 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन रुकती नहीं है। इनके 5000 डब्बे वाले 800 डिब्बे दूसरे को ऑपरेशन करते हैं लोड एंड लोड करने में सेम ट्रेन सेम लगेज से वो ट्रैवल करते हैं। वो आज बंद करके उसको पता कि ट्रेन में मेरा डब्बा वाला होगा बोरोली से जो ट्रेन आएगी वो कैलकुलेट मराठ मुकेश्वरी डब्बे वालों को मदद करते हैं। जो थाना से ट्रेन आते वो मुल्क वाले डब्बे को लोड एंड लोड करने में मदद करते हैं। सब डब्बे वाले अगर साथ में नहीं जाएंगे तो पूरी सप्लाई चेन फेल होने वाली है। इसलिए पेपर ट्रेन है 4000 किलोमीटर से 8000 स्पीड बोर्ड में एक्सट्री ड्यूटी पर डब्बे वाले का काम रोज ट्रेन के साथ रोज के रोज हो रहा है। ये लगेज कंपार्टमेंट हमारा टूवर्स चंडीगढ़ फोर्ट टूवर्स कोरापुट टूवर्स कल्याण ट्रेन ट्रैवलिंग टाइम है 10:15 AM to 11:15 AM। ये चर्चगेट स्टेशन ब्रिटिश स्टेशन पे 11:15 AM के सब डब्बे वाले आ चुके हैं। 10-15 मिनट में शॉर्टिंग करके डिलीवरी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये रिटर्न जर्नी है तो 1 से 2 बजे रिटर्न में एम्प्टी डब्बे वापस करने इंक्वायरी करके रोज रिटर्न ओरिजिनल स्टेशन वाइज इंक्वायरी होकर जाते लोग पॉइंट पर रिलायबल टाइम ऐसा रोज के रोज टाइम पे हमारा स्पॉट और टाइमिंग सेम रहता है। ये रिटर्न देने में डब्बे वाले रिलैक्स में है। जो भी डिसिप्लिन तोड़ेगा उसको फाइन भरना है। टोपी नहीं देने का 50 रुपीज फाइन। कोई डब्बे की कंप्लेंट आएगी 200 रुपया फाइन। कोई डब्बा वाला कोई टाइम मैनेजमेंट है। हम इसी तरह कस्टमर के टाइम से डब्बा भरने की आदत देते हैं। ये मुंबई की लोकल ट्रेन की जानकारी आपको 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन रुकती नहीं है। इनके 5000 डब्बे वाले 800 डिब्बे दूसरे को ऑपरेशन करते हैं लोड एंड लोड करने में सेम ट्रेन सेम लगेज से वो ट्रैवल करते हैं। वो आज बंद करके उसको पता कि ट्रेन में मेरा डब्बा वाला होगा बोरोली से जो ट्रेन आएगी वो कैलकुलेट मराठ मुकेश्वरी डब्बे वालों को मदद करते हैं। जो थाना से ट्रेन आते वो मुल्क वाले डब्बे को लोड एंड लोड करने में मदद करते हैं। सब डब्बे वाले अगर साथ में नहीं जाएंगे तो पूरी सप्लाई चेन फेल होने वाली है। इसलिए पेपर ट्रेन है 4000 किलोमीटर से 8000 स्पीड बोर्ड में एक्सट्री ड्यूटी पर डब्बे वाले का काम रोज ट्रेन के साथ रोज के रोज हो रहा है। ये लगेज कंपार्टमेंट हमारा टूवर्स चंडीगढ़ फोर्ट टूवर्स कोरापुट टूवर्स कल्याण ट्रेन ट्रैवलिंग टाइम है 10:15 AM to 11:15 AM। ये चर्चगेट स्टेशन ब्रिटिश स्टेशन पे 11:15 AM के सब डब्बे वाले आ चुके हैं। 10-15 मिनट में शॉर्टिंग करके डिलीवरी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये रिटर्न जर्नी है तो 1 से 2 बजे रिटर्न में एम्प्टी डब्बे वापस करने इंक्वायरी करके रोज रिटर्न ओरिजिनल स्टेशन वाइज इंक्वायरी होकर जाते लोग पॉइंट पर रिलायबल टाइम ऐसा रोज के रोज टाइम पे हमारा स्पॉट और टाइमिंग सेम रहता है। ये रिटर्न देने में डब्बे वाले रिलैक्स में है। जो भी डिसिप्लिन तोड़ेगा उसको फाइन भरना है। टोपी नहीं देने का 50 रुपीज फाइन। कोई डब्बे की कंप्लेंट आएगी 200 रुपया फाइन। कोई डब्बा वाला कोई करता जेल होता है। आज गुना करो मॉर्निंग में फाइन करो अगले मॉर्निंग काम पे ज्वाइन हो जाओ नहीं तो कोर्ट में जब फैसला 10 साल भी फैसला नहीं होता है। बिजनेस बंद भी हो जाएगा तो भी कोर्ट का मैटर फिनिश नहीं होता। इसलिए एक ही एसोसिएशन आज तक वर्ल्ड में कोई कोर्ट मैटर हुआ नहीं कोई पुलिस केस हुआ नहीं और वैसे भी होगा नहीं। ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में सब डब्बे वाले रहते थे इतना बढ़िया नेटवर्क हम कर रहे हैं। डब्बे वाला डिग्निटी 4 नवंबर 2003 चर्चगेट करता जेल होता है। आज गुना करो मॉर्निंग में फाइन करो अगले मॉर्निंग काम पे ज्वाइन हो जाओ नहीं तो कोर्ट में जब फैसला 10 साल भी फैसला नहीं होता है। बिजनेस बंद भी हो जाएगा तो भी कोर्ट का मैटर फिनिश नहीं होता। इसलिए एक ही एसोसिएशन आज तक वर्ल्ड में कोई कोर्ट मैटर हुआ नहीं कोई पुलिस केस हुआ नहीं और वैसे भी होगा नहीं। ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में सब डब्बे वाले रहते थे इतना बढ़िया नेटवर्क हम कर रहे हैं। डब्बे वाला डिग्निटी 4 नवंबर 2003 चर्चगेट होते हैं। कस्टमर हमारे राजा होते हैं। कस्टमर इज आवर किंग नॉट ओनली सिंह इज आवर किंग ऐसी भावना हम दिल में रखते हैं। प्रिंस चाय को सिर्फ मंजूर की 5 स्टार होटल छोड़ के चर्चगेट के सामने फुटपाथ पे आके 11:20 AM को डब्बे का बिजनेस कैसा होता है उनके बारे में उन्होंने चर्चा की।
टिफिन कैसा होता है, दाल किस में रखते, सब्जी किस में रखते, चावल किस में रखते, कोडिंग का सिस्टम क्या है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, डब्बे का वजन इतना होता है 60-70 किलो, आप सर पे लेके दौड़ते हो, कंधे पे लेके भागते हो, आपका नेक का प्रॉब्लम है, पीठ की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है क्या, सब इंक्वायरीज करें, इट इज अमेजिंग वर्क इन द वर्ल्ड। ऐसी शाबाश की प्रिंट चार्ज का डबवाला एसोसिएशन दी थी। डबवाला एसोसिएशन प्रिंट चार्ज को हमने कंप्यूटर को टोपी दी थी, एक लंच बॉक्स डब्बा भी दिया था। जब मैं प्रिंट चार्ज के सेकंड मैनेज में लंदन में गया था, जहाँ अपना इंडिया का कोहिनूर डायमंड रखा है, उनके बाजू में मुंबई डब्बावाला का डब्बा, लंच बॉक्स डब्बा और कंप्यूटर को टोपी प्रिंट चार्ज ने आबादित रखी हुई है। Some achievements were recorded this time managed Sigma rating, named in Guinness Book of World Records, registered with British Review or not, issued ISO 2000 सर्टिफिकेट, इतने सारे सर्टिफिकेट डब्बावाला एसोसिएशन को मिल चुके हैं, मगर डब्बावाला कोई सर्टिफिकेट पाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। लोग अच्छा काम करो, लोग अपने आप पीछे भाग के आते, बहुत सारे विदेशी लोग हमारे पीछे दौड़ते, शूटिंग करते, रिसर्च करते, केस स्टडी लिखते, प्रोजेक्ट करते, मगर हम कभी किसी को बोलते नहीं है। लोग आते खुद का फोकट का टाइम बर्बाद करते, फोकट का पैसा बर्बाद करते, 15-20 दिन हमारे पीछे दौड़ते हैं। हमारा डब्बावाला साइकिल से सिग्नल तोड़ के जाता है और सिग्नल पर अटक जाता है। एक दिन में कोई डब्बावाला का फॉलो शूटिंग नहीं कर सकता है, उसको 15 दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि 40 डब्बे के पास फुल सर्विस करेंगे, इसलिए खुद का पैसा बर्बाद होता है, खुद का टाइम बर्बाद होता है, तो पॉकेट के सर्टिफिकेट आगे मिल जाता है। ऐसे हमारे डब्बावालों को कुछ सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। क्या ऐसा सर्टिफिकेट लोकल की ट्रेन की क्राउड देखो, वो शूटिंग करने के लिए उनको कैमरा लेके घुसने में प्रॉब्लम होता है, मगर डब्बे वाले वही ट्रेन से वही लगेज से रोज डेस्टिनेशन जाते हैं। इसलिए आईएसओ सर्टिफिकेट जो शूटिंग करने के लिए मंडे टू फ्राइडे उनको वेटिंग करना पड़ा था। सैटरडे के दिन हाफ डे होता है, तो सैटरडे के दिन आके लगेज में आके शूटिंग करके आईएसओ सर्टिफिकेट हमें दिया है। ये रिचर्ड ब्रैंसन है, वर्जिन अटलांटिक एयरवेज के चेयरमैन, वो भी डब्बा लेके हाथ में टोपी लेके पहन के हमारे साथ घूम रहे थे। लगेज कंपार्टमेंट में आए, बम्बई के पुलिस थे, मीडिया के लोग थे, लगेज कंपार्टमेंट में घुस आए थे। ऐसा विदाउट लगेज वाले फालतू आदमी को कभी अलाउड नहीं करते, क्योंकि डब्बे में बहुत क्राउड होती है, डब्बे में अनाज होता है, बूट के चप्पल के ऊपर डब्बे के ऊपर अपने गुस्सा आ जाता है, तो मैं झगड़ा बढ़ जाता है। मगर ये वहां से पुलिस वाले को, मीडिया के लोगों लेके आए तो हमारी बोलती बंद हुई। दादर से लेकर चर्चगेट तक क्वेश्चन आंसर करते करते हम लोग चर्चगेट रिपोर्ट गए थे, हाथ में डब्बा लेके टोपी पहन के आगे चल रहे थे, मीडिया के लोग सामने खड़े थे। रेलवे मिनिस्टर को पहले खबर थी, रिचर्ड ब्रैंसन आगे पता नहीं था साहब कौन है। रेलवे मिनिस्टर हमारे लिए अलग गेट खोल के अलग रूट बनाया था, उनको रोज नहीं बनाते थे, उस दिन बनाया था। मीडिया के लोग लिए अलग स्पॉट दिया था, पब्लिक के लिए अलग रूट। मीडिया के लोग जोर जोर से घूम मारे थे, रिचर्ड ब्रैंसन क्यों डब्बा वाले के टाइम पास करते, क्यों उनका टाइम बर्बाद करते। रिचर्ड ब्रैंसन हाथ जोड़ के कह रहे थे, मैं डब्बे वाले का टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। फिर कहीं के लिए उसके साथ आप भाग रहे, बोले मुझे डब्बे वाले के साथ 20-25 फोटो खिंचवाना है, क्या करेंगे फोटो खिंचवा कर। बोले मेरे वर्किंग अटलांटिक एयरवेज पूरे वर्ल्ड में दौड़ रही है, पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े कंट्री में मेरे बड़े बड़े ऑफिस है, हर ऑफिस में मैं ऐसे डब्बे वाले के साथ फोटो लगाना चाहता हूँ। मेरे स्टाफ सुबह मॉर्निंग में जब काम पे ज्वाइन हो जाते, मैं डब्बे वाले को, मेरे स्टाफ को वार्निंग देना चाहता हूँ, काम करो, बम्बई डब्बे वाले जैसा करो, 6 सिग्मा छोड़ दो, मगर 2 सिग्मा तक अपने अटलांटिक एयरवेज लेके जाने की कोशिश करो। ऐसे रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑफिस में आपके फोटो लगा के रखे हुए। ये टॉप 50% है इंडिया के। फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, रेड स्क्वायर में मेरा फोटो डेली पेपर ने 2007 में सर्वे करके लगाया। इतने बड़े आदमी के साथ हमारी हम लोग कार्य है कि नहीं आज तक मुझे पता नहीं है, मगर डेली गवर्नमेंट ने सर्वे करके टॉप 50% में हमारी फोटो लगा दिया। मैं डेली पेपर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 26 जुलाई 2005 में पूरी बम्बई पानी के अंदर डूब रही थी, पूरी बम्बई बंद हो चुकी थी, रेलवे, एसी कार, बस सब बंद हो, बम्बई डब्बे वाले का काम चालू था। इंटरनेट द्वारा प्रिंट चार्ज को खबर उन्होंने देखी, पूरी बम्बई 3 फुट पानी रेलवे के पटरी के ऊपर था, 3 फुट पानी रोड पे हाईवे पे चल रहा था। डब्बे वाले साइकिल में रिटर्न जर्नी के डब्बे दे रहे थे। 3:30 बजे मिट्टी रिवर को पूरा फ्लड आया था, पूरी बम्बई बंद हो चुकी थी, कोई लोग ऑफिस में स्टे किए, कोई पैदल चल रहे थे। हम लोग साइकिल के रिटर्न डब्बे दे रहे थे। शाम को 6 बजे प्रिंस जज ने ऐसा देखा, उन्होंने हमारे नाम से लेटर लिखा, मैं, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरा देश डब्बे वाले को जो प्रॉब्लम उसके साथ है, भगवान से मैं प्रार्थना करूँ उनका प्रॉब्लम हट जाए और उनका बिजनेस शुरू हो जाए। ऐसा शुभ संदेश प्रिंस जज हमारे नाम से लेटर लिख सकते, मेरे भारत देश का नेता ऐसा कोई लेटर लिखा नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य की सौभाग्य, आज तक मुझे खबर नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
मेहमान हो, खुदा तेरे दरबार होते हैं, कस्टमर हमारे राजा होते हैं, कस्टमर इज आवर किंग, नॉट ओनली सिंग इज आवर किंग, ऐसी भावना हम दिल में रखते हैं। प्रिंस जॉर्ज को सिर्फ मंजूर की 5 स्टार होटल छोड़ के चर्चगेट के सामने फुटपाथ पे आके 11:20 AM को डब्बे का बिजनेस कैसा होता है उनके बारे में उन्होंने चर्चा की। टिफिन कैसा होता है, दाल किस में रखते, सब्जी किस में रखते, चावल किस में रखते, कोडिंग का सिस्टम क्या है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, डब्बे का वजन इतना होता है 60-70 किलो, आप 100 रुपये लेके दौड़ते हो, कंधे पे लेके भागते हो, आपका नेक का प्रॉब्लम है क्या, पीठ की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है क्या, सब इंक्वायरीज करें। इट इज अमेजिंग वर्क इन द वर्ल्ड। ऐसी शाबाशी प्रिंस जॉर्ज का डबवाला एसोसिएशन से दी थी। डबवाला एसोसिएशन प्रिंस जॉर्ज को हमने कंप्यूटर को टोपी दी थी, एक लंच बॉक्स दवा भी दिया था। जब मैं प्रिंस जॉर्ज के सेकंड मैरिज में लंदन में गया था, जहाँ अपने इंडिया को कोहिनूर डायमंड रखा है, उनके बाजू में मुंबई डब्बावाला का डब्बा, लंच बॉक्स डब्बा और कंप्यूटर को टोपी प्रिंस जॉर्ज ने आबादी रखी हुई है। Some achievements were recorded this time. Managed Sigma Reddy, name in Guinness Book of World Records, registered with British Review or not, issued ISO 2000 सर्टिफिकेट। इतने सारे सर्टिफिकेट डब्बावाला एसोसिएशन को मिल चुके हैं, मगर डब्बावाला कोई सर्टिफिकेट पाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। लोग अच्छा काम करो, लोग अपने आप पीछे भाग के आते। बहुत सारे विदेशी लोग हमारे पीछे दौड़ते, शूटिंग करते, रिसर्च करते, केस स्टडी लिखते, प्रोजेक्ट करते, मगर हम कभी किसी को बोलते नहीं है। लोग आते खुद का फोकट का टाइम बर्बाद करते, फोकट का पैसा बर्बाद करते, 15-20 दिन हमारे पीछे दौड़ते हैं। हमारा डब्बा वाला साइकिल से सिग्नल तोड़ के जाता है और सीढ़ियों पर अटक जाता है। एक दिन में कोई डब्बा वाले को फॉलो नहीं कर सकता है, उसको 15 दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि 40 डब्बे के पास फुल सर्विस करेंगे, इसलिए खुद का पैसा बर्बाद होता है, खुद का टाइम बर्बाद होता है, तो पॉकेट के सर्टिफिकेट आगे मिल जाता है। ऐसे हमारे डब्बा वालों को सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। ऐसे सर्टिफिकेट लोकल की ट्रेन की क्राउड देखो, वो शूटिंग करने के लिए उनको कैमरा लेके घुसने में प्रॉब्लम होता है, मगर डब्बे वाले वही ट्रेन से वही लगेज से रोज डेस्टिनेशन जाते हैं। इसलिए ISO सर्टिफिकेट जो शूटिंग करने के लिए मंडे टू फ्राइडे उनको वेटिंग करना पड़ा था। सैटरडे के दिन हाफ डे होता है, तो सैटरडे के दिन आके लगेज में आके शूटिंग करके ISO सर्टिफिकेट हमें दिया है। ये रिचर्ड ब्रैंसन है, वर्जिन अटलांटिक एयरवेज के चेयरमैन, वो भी डब्बा लेके हाथ में टोपी लेके पहन के हमारे साथ घूम रहे थे। लगेज कंपार्टमेंट में आए, बम्बई के पुलिस थे, मीडिया के लोग थे, लगेज कंपार्टमेंट घुस आए थे। ऐसा मिलाप लगेज और फालतू आदमी को कभी अलाउड नहीं करते, क्योंकि डब्बे में बहुत क्राउड होती है, डब्बे में अनाज होता है, बूट के चप्पल के ऊपर डब्बे के ऊपर अपने गुस्सा आ जाता है, तो मैं झगड़ा बढ़ जाता है। मगर ये वहां से पुलिस वालों को, मीडिया के लोगों लेके आए तो हमारी बोलती बंद हुई। दादर से लेकर चर्चगेट तक क्वेश्चन आंसर करते करते हम लोग चर्चगेट पे पहुंच गए थे। हाथ में डब्बा लेके टोपी पहन के आगे चल रहे थे, मीडिया के लोग सामने खड़े थे। रेलवे मिनिस्टर को पहले खबर थी, रिचर्ड ब्रैंसन, हमें पता नहीं था ये साथ कौन है। रेलवे मिनिस्टर हमारे लिए अलग गेट खोल के अलग रूट बनाया था, उनके रोज नहीं बनाते थे, उस दिन बनाया था। मीडिया के लोग लगे अलग स्पॉट दिया था, पब्लिक के लिए अलग रूट। मीडिया के लोग जोर जोर से घूम मारे थे, रिचर्ड ब्रैंसन क्यों डब्बा वाले टाइम पास करते, क्यों उनका टाइम बर्बाद करते। रिचर्ड ब्रैंसन हाथ जोड़ के कह रहे थे, मैं डब्बे वाले का टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। फिर कहीं के लिए उसके साथ आप भाग रहे, बोले मुझे डब्बे वाले के साथ 20-25 फोटो खिंचवाना है, क्या करेंगे फोटो खिंचवा कर? बोले मेरे वर्जिन अटलांटिक एयरवेज पूरे वर्ल्ड में दौड़ रही है, पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े कंट्री में मेरे बड़े बड़े ऑफिस है, हर ऑफिस में मैं ऐसे डब्बे वाले के साथ फोटो लगाना चाहता हूँ। मेरे स्टाफ सुबह मॉर्निंग में जब काम पे गाइड हो जाते, मैं डब्बे वाले को, मेरे स्टाफ को वार्निंग देना चाहता हूँ, काम करो, बम्बई डब्बे वाले जैसा करो, सिग्मा छोड़ दो, मगर 2 सिग्मा तक अपने अटलांटिक एयरवेज लेके जाने की कोशिश करो। ऐसे रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑफिसर्स में आपके फोटो लगा के रखे हुए। ये टॉप 50% है इंडिया के। फर्स्ट टाइम में, सेकंड लाइन में, रेड्स में मेरा फोटो डेली पेपर ने 2007 में सर्वे करके लगाया। इतने बड़े आदमी के साथ हम लोग ताली है कि नहीं आज तक मुझे पता नहीं है, मगर डेली पेपर ने सर्वे करके टॉप 50% में हमारी फोटो लगा दिया। मैं डेली पेपर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 26 जुलाई 2005 में पूरी बम्बई पानी के अंदर डूब रही थी, पूरी बम्बई बंद हो चुकी थी, रेलवे, एसी कार, बस सब बंद हो, बम्बई डब्बे वाले का काम चालू था। इंटरनेट द्वारा प्रिंट चार्ज को खबर उन्होंने देखी, पूरी बम्बई 3 फुट पानी रेलवे के पटरी के ऊपर था, 3 फुट पानी रोड पे, हाईवे पे चल रहा था। डब्बे वाले साइकिल में रिटर्न जर्नी के डब्बे दे रहे थे। 3:30 बजे मिट्टी रिवर को पूरा फ्लड आया था, पूरी बम्बई बंद हो चुकी थी। कोई लोग ऑफिस में स्टे किए, कोई पैदल चल रहे थे, हम लोग साइकिल पे रिटर्न डब्बे दे रहे थे। शाम को 6 बजे प्रिंस जॉर्ज ने ऐसा देखा, उन्होंने हमारे नाम से लेटर लिखा, मैं, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरा देश डब्बे वाले का जो प्रॉब्लम उसके साथ है,
भगवान से मैं प्रार्थना करूं उनका प्रॉब्लम हट जाए और उनका बिजनेस शुरू हो जाए, ऐसा शुभ संदेश प्रिंस साहब हमारे नाम से लेटर लिख सकते हैं, पर भारत देश का नेता ऐसा कोई लेटर लिखा नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य की सौभाग्य, आज तक मुझे खबर नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। अब जाते जाते संदेश देना चाहता हूँ, खुदा हो या भगवान हो, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं कि इतना ज्यादा नॉलेज हमें मत दो जो हमारे बिजनेस को बर्बाद करते हैं। अच्छा है थोड़ा, थैंक यू। लंदन Hello. So dear students, let's once again clap for a wonderful presentation by Dabawala. There is an old saying, all MBAs are not managers. मेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं कि इतना ज्यादा नॉलेज हमें मत दो जो हमारे बिजनेस को बर्बाद करते हैं। अच्छा है थोड़ा, थैंक यू। लंदन Hello. So dear students, let's once again clap for a wonderful presentation by Dabawala. There is an old saying, all MBAs are not managers. If I sum up the whole presentation of Dabawala in the shape of a couplet, I will say कि जो सफर करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, और एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। So dear students, we have got panelist students with us in this Dabawala session. We have four students rather from DAV College of Engineering and Technology, Akanksha, Sania, Manisha and Gaurav on the stage with us, and then we have one student from GNIMT, Karanpreet. We also have three students from CT group of institutions, Jasmeet, Manoj and Kirandi. All the four and for this side panelists, you are welcome in the discussion. And to quickly begin with, I have a small question. मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल ये है कि आप मैनेजमेंट गुरु हैं, आपने दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, आप जीरो डिफेक्ट वर्किंग पे काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मुंबई के अंदर तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, फ्लड आ जाए, और आपका जो जुनून है, जो पैशन है, आप उसको कैसे कायम रख पाएंगे टू डिलीवर टिफिन बॉक्सेस टू दी वर्क प्लेसेस? मैं इस बारे में कुछ आपसे जानना है। ऐसे तो हम लोग डब्बे का काम मुंबई में करते हैं। डब्बे वाले रोज घर से सुबह 6 बजे उठते, भगवान की पूजा करते, साइकिल की पूजा करते और अपने बिजनेस में चल पड़ते हैं। बाकी दुनियादारी कुछ देखने में उनको टाइम ही नहीं है, ना टीवी देखना, ना रेडियो सुनना, ना इंटरनेट देखना, कुछ नहीं। और मुंबई में जब ऐसी आफत आती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वो डायरेक्ट भगवान की पूजा करते, कस्टमर की पूजा करने सुबह सुबह घर में जाते, कस्टमर की बेल बजाते, भाभी जी, बहन जी, डब्बा दीजिए। हमारे मुंबई के पब्लिक रहने वाले कस्टमर बहुत सतर्क होते हैं। वो रोज रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते, कौन से कोने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश है कि अटैक है कि कोई डकैती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हम डब्बा मांगने का काम करते हैं। मैडम अंदर से आवाज देते, भाई साहब आप आज साहब काम पे नहीं जाएंगे, मुंबई असुरक्षित है, मुंबई में कोई प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। जो खाने वाले ने डब्बा लेके जाएंगे तो हम खाना किसके लिए लेके जाएंगे? वो भी छुट्टी लेते, हमें भी छुट्टी मिलती है। इस प्रॉब्लम मैं ये समझ रहा हूँ आपके इस जवाब से कि अगर मैं इसको फिर समअप करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मंजिल मिले या ना मिले, मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में कारवां तो है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ। तो मेरे साथ राइट साइड में जो स्टूडेंट्स, पैनलिस्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे आई वुड रिक्वेस्ट वन बाय वन टू ऑल द स्टूडेंट्स, इफ यू हैव क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम द स्पीकर्स प्लीज। करंटली फ्रॉम GNIMT, यू हैव, जी बताइए।
if I sum up the whole presentation of Dabbawala in the shape of a couplet, I will say कि जो सफर करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, और एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं. So dear students, we have got panelist students with us in this Dabbawala session. We have four students rather from DAV College of Engineering and Technology, Akanksha, Sania, Manisha and Gaurav on the stage with us, and then we have one student from GNIMT, Karanpreet. We also have 3 students from CT group of institutions, Jasmeet, Manoj and Kirandeep. All the 4 this side panelists, you are welcome in the discussion. And to quickly begin with, I have a small question. मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल ये है कि आप मैनेजमेंट गुरु हैं, आपने दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, आप जीरो डिफेक्ट वर्किंग पे काम करते हैं. मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मुंबई के अंदर तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, फ्लड आ जाए, और आपका जो जुनून है, जो पैशन है, आप उसको कैसे कायम रख पाएंगे टू डिलीवर टिफिन बॉक्सेस टू दी वर्क प्लेसेस? मैं इस बारे में कुछ आपसे जानना है. ऐसे तो हम लोग डब्बे का काम बम्बई में करते हैं. डब्बे वाले रोज घर से सुबह 6 बजे उठते, भगवान की पूजा करते, साइकिल की पूजा करते और अपने बिजनेस में चल पड़ते हैं. बाकी दुनियादारी कुछ देखने में उनको टाइम ही नहीं है. ना टीवी देखना, ना रेडियो सुनना, ना इंटरनेट देखना, कुछ नहीं. और बम्बई में जब ऐसी आफत आती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वो डायरेक्ट भगवान की पूजा करते, कस्टमर की पूजा करने सुबह सुबह घर में जाते, कस्टमर की बेल बजाते, भाभी जी, बहन जी डब्बा दीजिए. हमारे बम्बई के पब्लिक रहने वाले कस्टमर बहुत सतर्क होते हैं. वो रोज रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते, कौन से कोने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश है कि अटैक है कि कोई डकैती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. हम डब्बा मांगने का काम करते हैं. मैडम अंदर से आवाज देते, भाई साहब आप आज साहब काम पे नहीं जाएंगे, मुंबई असुरक्षित है, बम्बई में कोई प्रॉब्लम खड़ा हुआ है. जो खाने वाले ने डब्बा लेके जाएंगे तो हम खाना किसके लिए लेके जाएंगे? वो भी छुट्टी लेते, हमें भी छुट्टी मिलती है. ऐसी प्रॉब्लम मैं ये समझ रहा हूँ आपके इस जवाब से कि अगर मैं इसको फिर समअप करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मंजिल मिले या ना मिले, मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में कारवां तो है. मैं ये समझ के चल रहा हूँ. तो मेरे साथ राइट साइड में जो स्टूडेंट्स, पैनलिस्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे आई वुड रिक्वेस्ट वन बाय वन टू ऑल द स्टूडेंट्स, इफ यू हैव क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम द स्पीकर प्लीज. करणप्रीत फ्रॉम GNIMT, यू हैव, जी बताइए. सवाल यह है, मैं ऑडियंस को भी जरा सुना दूं कि करणप्रीत का सवाल यह है कि इनका कोई HR डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये कैसे HR एक्टिविटीज को, मैन पावर मैनेजमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हमारे डब्बे वाले सब पश्चिम महाराष्ट्र से वारकरी संप्रदाय से जुड़े हमारे पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज के सोल्जर्स थे. और ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैथल रेंज में हम जो डब्बे वाले पैदा होते, वही एरिया से सब डब्बे वाले हैं. बाहर से कोई डब्बे वाले कोई बनने आते नहीं, हम भी बनने देते नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क करने के पास किसी के पास इतनी शक्ति नहीं. जो हमारा एरिया है पूरा पहाड़ी एरिया है. हम बचपन लेते हैं, वहाँ मानव जीवन सुविधा लेने के लिए कोई अभी सुविधा नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई कॉलेजेस नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है. बस आकाश से बारिश आती है, हम पहाड़ी पे जन्म लेते हैं, बड़े सीनियर सिटीजन गाँव में रहते हैं. वो एरिया से हम लोग डब्बे वाले को लेके आते हैं, 6 महीने उनको ट्रेनिंग देते हैं. अगर उसको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, कोडिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कस्टमर के साथ जरा बात करने का तमीज होना चाहिए. उसको बंदे को हम 4,000 पर मंथ सैलरी देते हैं. अगर उसको डब्बे वाला बनना है, डब्बे वाले में शेयर होल्डर बनना है, वर्किंग पार्टनर बनना है, तो उसको 60-70,000 कैपिटल मनी इन्वेस्ट करेंगे कोई गोल्ड टीम को, तो वर्किंग पार्टनर बनेगा, तो उसका इनकम सोर्स 14,000 बन जाती है. और ऐसे डब्बे वाले वर्किंग पार्टनर है, नौकर मालिक सिस्टम नहीं है. अगर टीम में कोई बंदा अच्छा काम भी नहीं करेगा तो उसको क्रिकेट टीम में जैसे कोई बंदे को निकाला जाता है, ऐसे हमको भी हमारे टीम को कोई बंदे से कोई नुकसान होता है, उसको सीनियर जो है
और सब्स्टिट्यूट उसको निगरानी करते, उसको वार्निंग देते एक दो बार, अगर वो नहीं सुधर जाएगा तो उसको टीम से निकलने की सिस्टम भी हमारे पास है। लेकिन कभी भी स्कूल में पढ़ने नहीं गए आप। यू हैव सम क्वेश्चन विद यू? वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे सर आपने बॉम्बे में अपना काफी होल्ड रखा है, 60 to 70 किलोमीटर सर आप डिलीवर करते हो, तो सर आपका कोई फर्दर प्लान है कि आप अपने नेटवर्क को फर्दर एक्सपैंड करना चाहते हैं? देखिए मुंबई तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल का मैं पहले सीमा किसी से देना चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूँ। हमारा जो बिजनेस है सब डब्ल्यू वाले के टीम के तो है, उसके साथ हमारा स्कूल व्हीकल साइकिल है जो हमें ट्रैफिक से बचाती है। हम विले पार्ला में मैं मेरी 20 साइकिल लेके जाता हूँ, स्टेशन में वहाँ पार्किंग करता हूँ, ट्रेन पकड़ के बॉम्बे के 70 डेस्टिनेशन पे डब्बे लेके जाता हूँ। 70 डेस्टिनेशन के लोग पार्ला में जो लंच के डब्बे लेके आते हैं, हॉस्पिटल हो कॉलेजेस हो, वो मेरी साइकिल यूज करते, मैं उनके आगे डेस्टिनेशन पे साइकिल यूज करता हूँ। इसलिए साइकिल पार्किंग का प्रॉब्लम छूट जाता है, दो साइकिल खरीदने की प्रॉब्लम घट जाती है। इसलिए हमारी जो टीम का काम चल रहा है वो टीम वर्क है, बाइसिकल है और बम्बई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन है। बम्बई की लोकल ट्रेन ऐसे पूरे वर्ल्ड में नहीं जो 3-4 मिनट तक लोकल ट्रेन दौड़ रही है। 9 कोच की थी, अभी 12 कोच है, 12 कोच से अभी 15 कोच है, 2 ट्रैक थे, 4 से 6 होने जा रहे हैं। हर्बर रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है। बम्बई 3 रूट में चल रही है, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, हर्बर रेलवे। आप अगर विरार से बम्बई निकल जाओगे, व्हीकल लेके जाओगे तो आप 3-4 घंटे डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। मगर रेलवे से जाओगे तो 1 घंटे के अंदर आप कौन से भी स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसे जो हमारी लाइफ लाइन है, वो लाइफ लाइन अगर फेल हो जाएगा तो पूरी बम्बई फेल हो सकती है, डब्ल्यू का सप्लाई चेन भी फेल हो सकता है। इसलिए दूसरी सिटी में मैं बहुत सारी कोशिश कर चुका हूँ। मैं चेन्नई में गया था, वहां तो देखा लोकल ट्रेन है मगर इतने 70 लोकल स्टेशन वाली नहीं है, इतने 3 रूट पे लोकल ट्रेन नहीं चल रही है। और वहां के खाने की पसंद लोग खाली सांभर राइस खाने वाले हैं। वो कैंटीन में बनो चाहे घर में बनो, वो कहाँ भी खाते हो, खाने की चॉइस राइस की टेस्ट अच्छी है। जब मैं दिल्ली में जा रहा था, हम लोग ट्रेन में चढ़े, ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, आराम से आदमी उतर जाते हैं, तो डब्बे भी आराम से लोग साथ में लेके जा सकते हैं। ये मेरी भावना। दिल्ली राउंडेड सिटी है, लोग व्हीकल से जाते, ऑटो से जाते, टू व्हीलर से जाते, प्लेन से जाते, जल्दी नहीं है। मैं वो स्टूडेंट को बोला, अरे मैं बम्बई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहा हूँ कि हवाई जहाज में कर रहा हूँ। बम्बई लोकल ट्रेन में सफर करने की जो मजा है मुझे, ये दिल्ली में नहीं आ रही है। कोई धक्का तो मारो यार, मैं लोकल की ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। ऐसी इतनी भीड़ होती है, क्राउड होती है कि खुद के पेमेंट के पाउच आप सेफ्टी घर में लेके जा सकते हैं, तो डब्बा लेके रोज हाथ में लेके घूम सकेंगे ट्रेन में। इसलिए डब्बे वाले लो कॉस्ट एंड रिलायबल सर्विस देते हैं, टाइम पे डब्बा डिलीवरी करते हैं, और अपने घर वाले को जो अपने इनकम सोर्स करने वाले जो डब्बे वाला है वो पहुंचा दे देते हैं। कल क्या कहते आज का देना चाहिए। और जहाँ आपको बिजनेस करना है, नौकरी करनी 20-25 साल, और रोज वही पासपोर्ट, वही रेस्टोरेंट, कितने दिन बात होगी। इसलिए डब्बे वाले की गरज बम्बई में है। और बम्बई ऐसी सिटी है पूरे वर्ल्ड में, ऑल कास्ट कम्युनिटी को एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। खाने की चॉइस अलग रखते हैं, पंजाबी जो है अलग खाना खाएंगे, गुजराती अलग खाएंगे, महाराष्ट्र अलग खाएंगे, साउथ इंडियन अलग खाएंगे। बम्बई में ऐसी सिस्टम है और हम भी उसको 125 साल से सर्विस दे रहे हैं, ईमानदारी से, एक बार काम कर रहे हैं। जो हमारा बिजनेस बम्बई में चलता है। आपका बिजनेस बम्बई में चलता रहे और तरक्की करते रहे, लेकिन पंजाब भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रेगुलर फूड को पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपनी बिजनेस को लीवरेज कर सकते हैं पंजाब के अंदर। जल्दी यहाँ पे फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होगी। लेट्स गो टू अवर लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रुप एंड वी कम बैक टू यू अगेन। गौरव बास फ्रॉम DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। कैन वी हैव द फर्स्ट पार्टिसिपेंट? योर नेम इज? My name is Manisha Kapoor. नमस्कार सर। मनीषा इज फ्रॉम DAV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपका जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली, आपको कैसा लगता है? और कोई आपके काम में, लाइफस्टाइल में, एटीट्यूड में कुछ चेंज आया? अगर आया तो वो अच्छा था, आपके लिए कितना अच्छा? आदमी की सोच तो बहुत बड़ी होती है, मगर करे क्या। आसमान के तारे देखने तो आसमान में उड़ाने भरनी चाहिए, समुद्र के मोती देखनी है तो समुद्र के पानी में डूबना चाहिए, और दोनों का सुख समाधान आदमी को लेना चाहिए। तो जमीन पे सही ढंग से खड़ा रहना चाहिए। डब्बे वाले कितने भी नाम हो, कितने भी नाम मिले, हम अपनी हैसियत छोड़ते नहीं। हम जमीन पे खड़े रह के आसमान के तारे भी देख सकते हैं, पानी के अंदर के मोती भी देख सकते हैं, और आदमी को अपने ग्राउंड लेवल पर रहना चाहिए, यही हम सोचते हैं।
Thank you, Professor Walter. Next question you have, your name is? My name is Sania Tandon. Sania is from DAV Institute of Engineering and Technology. Yes, पूछिए आप सवाल. सर मेरा क्वेश्चन है कि आप जाने जाते हैं मुंबई डब्बा वाला के नाम से, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मुंबई से बाहर ले जाना चाहते हैं? हर एक बिजनेसमैन सोचता है कि हर सिटी में अपना बिजनेस बढ़ना चाहिए, मगर मैंने पहले बोल दिया कि दिल्ली में क्या है, चेन्नई में क्या है, अहमदाबाद में गुजराती खाना खाने वाले, पंजाब में पंजाबी खाना खाने वाले, मगर बम्बई ऐसी सिटी अलग पूरे वर्ल्ड में, पूरे बम्बई इंडिया में बम्बई खाली आसमान की तरफ बढ़ती जा रही है, उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं है। बम्बई में खाली 2 एक्सप्रेस हाईवे और 2 रेलवे रूट है, वहां पे वो डेवलप हो चुकी है। क्राउड है, पूरे इंडिया के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग सेटल होते, बिजनेस करते हैं और वहां आते, पूरे काम करने लोग एक साथ रहेंगे, काम करेंगे, खाने की चॉइस अलग रखेंगे, और जहाँ बिजनेस नौकरी करना है वहां तो वही टाइप के खाना रोज रोज खाने पड़ते हैं। ऐसे इसलिए बम्बई में, महाराष्ट्र में तो कितने टाइप का अलग अलग खाना है, पंजाबी छोड़ के महाराष्ट्र में कोल्हापुरी, सोलापुरी, मालवनी, पुनेरी, वेज नॉन वेज टाइप के रोज का अपना इनकम सोर्स करने वाले आदमी कल क्या खाना खाया था, आज क्या लेना चाहिए। जो अपनी वाइफ होती है वो तन मन लगन से खाना बना के देती है। बम्बई के डब्बे वाले टाइम पे डब्बा लेके जाते हैं, और यहाँ भी हम करेंगे, मगर यहाँ के कस्टमर इतने होने चाहिए और वहाँ के डब्बा डिलीवरी करने वाले भी पर्सन यहाँ तैयार होने चाहिए, क्योंकि निस्वार्थपने काम करना चाहिए। जो महीने हम लोग पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारा स्वार्थ क्यों हो रहा है, और जो सर्विस पूरी सर्विस वर्ड समझते हैं, इंसान सेवा है, भगवान की सेवा वो समझते हैं, ऐसा मन अंतरात्मा हमें शांति मिलती है कि हम किसी से अन्नदान कर रहे हैं, परमार्थ भी हो रहा है, स्वार्थ भी हो रहा है। डब्बे वाले पढ़े लिखे होते तो आपके थिंकिंग के बारे में करते थे, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, मुझे बैंगलोर से संभाल रही है, और इसीलिए कोई टेंशन नहीं। आप बम्बई में ये इतना बिजनेस चलेगा, दूसरे सिटी में आप कोई करना चाहते तो मैं उनको गाइड करने जरूर नहीं किया। नहीं तो टाटा बिरला जैसा हमारी कंपनी पैसे डब्बे वाले सब दिल से आने रहते हैं, उससे पके रहते, कोई अगर करना चाहेगा तो मैं उसको गाइड करने जरूर उनको मदद कर सकता हूँ, क्योंकि कंपनी में बढ़िया चल रहा है, ध्यान करेंगे तो हम जरूर उसको हेल्प करेंगे। To break the questions from the panel, I would quickly invite one question from the audience. Anybody interested from the audience to ask a question? Quickly, please come. One question from the audience. Anybody interested, please raise your hand. No one is asking. Yes, you have a question? Please pass on the mic to him quickly. Yes, what is your question? Can you speak from there loudly? आ जाइए, नीचे आ जाइए, इनको जरा माइक पास कर दीजिए जरा, quickly. Representing Saint Soul Group of Institutions. इस बार मुझे टाइम बहुत कम है. We have to finish this session. Good morning, sir. My name is Akansha Bandari. I am from DAV Institute of Engineering and Technology. My question to you is that you already said that there were no strikes, and we have observed that since your establishment, there was not even a single day where we have observed a strike. So how you handle the disputes among the employees? There must be some grievances. So what are the ways you handle them? The question is कि when you have strikes in Mumbai, तो उसको हम सिचुएशन में हम चैलेंजेस को कैसे करते हैं? नहीं तो पहले उसको जवाब दे दिया है कि हम डब्बे वाले बाकी दुनियादारी देखते ना, हम कस्टमर से घर में जाते डब्बा मांगते, अगर स्ट्राइक होता है तो कस्टमर के घर में से हमें आवाज मिल जाता है भाभी से या सिस्टर से, आज स्ट्राइक के साथ काम पे नहीं जाएंगे तो हम डब्बा किसके लिए लेके जाएंगे। दादा जब छुट्टी होती है तो इन लोगों की भी छुट्टी हो जाती है जब स्ट्राइक होती है। जी आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? आप कॉलेज और नेम? माय नेम इज जसमीत कौर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंगली कामयाबी क्या है? कामयाबी के लिए फेम और पैसा जरूरी है? पंच लाइन जानना चाह रहा है कि कामयाबी पंच क्या है? एक सिंगल सेंटेंस में आप कामयाबी किसको कहते हैं? कामयाबी इसमें होती है कि तन मन लगन से काम करो, शक्ति और भक्ति से काम करो तो कामयाबी जीवन में मिल जाती है। इसलिए हम लोग कठिनाइयां जब उठ जाती है, इसलिए जब हौसले बुलंद हो जाते हो तो कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती है। ऐसे हमारे काम होता है, इसलिए हमारा कोई कामयाबी नहीं चलना है,
कामयाबी के बारे में बहुत कुछ कहना तो है। प्रेरणा, कामयाबी, मोटिवेशन वो अंदर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। अगर अंदर में होगा तो बाहर तो उनकी दुकान नहीं है मोटिवेशन की। काश Now we have only 2 students, parallel students with us. आप बताइए आप नाम? सर मेरा नाम मनोज कुमार। मैं आपसे ये मनोज कुमार फ्रॉम सिटी इंस्टीट्यूट। हाँ जी बताइए क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है, हजारों लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हर आदमी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उसको मोटिवेट कैसे करते हो, जो कि आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है? अगर मोटिवेशन होती है तो बिजनेसमैन के लिए मोटिवेशन लेना जरूरी नहीं होता है। सब वाले बिजनेस में वर्किंग पार्टनर है, शेयर होल्डर है। नौकर वाला सिस्टम थी हमारे 1980 तक, मगर जब दत्ता साहब ने 64 मिल का स्ट्राइक किया, आज तक स्ट्राइक चल रहा है। हजारों कस्टमर हमारे बेरोजगार बन चुके हैं। 100-200 डब्बा हमारा बिजनेस छोड़ के दत्ता बच्चे गाँव चलेंगे। अभी तक 64 मिल का स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ। इसलिए वहां से हम लोग प्रेरणा ली। अगर स्ट्राइक मीन सुसाइड, स्ट्राइक करने से क्या लोग हम नजदीक से देख चुके हैं। उस जमाने से हम लोग सब डब्बों को वर्किंग पार्टनर बनाए, शेयर होल्डर बनाए। अगर टीम में काम करना है, टीम वर्क, जैसे क्रिकेट टीम में होता है, बॉलर का रोल अलग है, बैट्समैन का अलग है, फील्डर का अलग है, सब्स्टिट्यूट का भी है। ऐसे हमारी टीम वर्क होता है। हर एक बंदा अपने अपनी रोल में बढ़िया टीम वर्क कर रहा है। इससे पूरी टीम को जो इनकम सोर्स होता है, एक्सपेंडिचर माइनस होके हर एक टीम का इनकम सोर्स सेम है। कई महीने में कोई टीम वर्क अच्छी नेटवर्क करेगी, उसको 50,000 गवर्नमेंट मिल जाता है, सबको सैलरी सेम मिलती है। इसमें जो सीनियर होता है वो कैप्टन बन जाता है। एक दूसरे से एरिया से ऐसा नहीं कि एक इंडिया से एक राजस्थान से और दूसरा एक हैदराबाद से, ऐसा नहीं। सब एक ही एरिया से, एक ही परिवार से, एक ही फैमिली से, ये फैमिली बिजनेस बन चुका है। Thank you very much. So before we end up the session with the last question from the parallel students, we will have a break and question from Mr. Charanjit Singh Chandy, Chairman of City Group of Institutions. मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर मैंने और मेरे दोस्तों ने हमने खाना खाना हो और ये डिब्बे वाले आप एक जहाँ भी बहुत बेरोजगार हैं, हम आपको जो लोग बेरोजगार हैं उनको आप काम दीजिए। हम सभी लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, ये खाना जो डिब्बे वाला है हम भी चाहते हैं गर्म खाना हमें भी 1 बजे मिले। और आप जैसे कि ये आप गुरु हैं ना मैनेजमेंट के, हम आपको आदमी भी देंगे जिनको आप प्रैक्टिस करा के हमें खाना यहाँ पंजाब में दिलाइए और एक जो उनको काम भी मिल जाएगा, हमें गर्म खाना भी मिल जाएगा। जरूर जरूर आप इतना रहेंगे, लेकिन कम से कम आपको सर 100-200 कस्टमर होना चाहिए। इससे ज्यादा है। देखिए सर बात ये है, हर एक को घर जाना पड़ता है। जी हाँ जी, उसके 2-3 घंटे लग जाते हैं और हम वापस भी नहीं आते। हम भी ये चाहते हैं कि खाना हमें यहाँ मिले और हमारे यहाँ बेरोजगारी भी बहुत है, हर एक जगह है और उन लोगों को काम मिल जाएगा, हमें गर्म खाना मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी आप बना दें तो वो कामयाब हो। हम जरूर आएंगे। खाली डब्बा डिलीवरी पर्सन ढूंढ लीजिए, आप खाने वाले कस्टमर भी आप सोच लीजिए। हम जरूर उनको कैसा कोडिंग है, कैसा टीम वर्क है, कैसा साइकिल चलाना है, कैसे खाना टाइम पे पहुंचना है। थैंक यू वेरी मच संजय साहब। आपका जो प्रपोजल है मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में satellite camp in Punjab and will do services to Punjabis. Last question from the last panelist. Please quickly ask because we are short of time. My name is Kiran Kaur और मेरा सवाल ये है कि कुछ बड़ी कॉर्पोरेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट और भारती एयरटेल, उन्होंने आपको अपना पोटेंशियल पार्टनर माना है, तो क्या आप वाकई में सोचते हैं कि उनके साथ कोई एसोसिएशन करेंगे या फ्यूचर में कोई पार्टनरशिप उनके साथ करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके पार्टनर बने? नहीं, हमारे डब्बे वाले के जो पढ़े लिखे लोग हैं, डब्बे वाले का बिजनेस बिल्कुल नहीं करते हैं। अभी डब्बे वाले के जो लड़के हैं वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर भी है, मगर पूरे इंडिया में ऐसे नहीं कि सब डॉक्टर पढ़ रही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से आज तक सबको साथ आपके साथ पढ़ने में सब डिस्टिंक्शन नहीं पा रहे, कोई फेल हो जाते हैं, कोई परिस्थिति से बेरोजगार बन जाते हैं। तो उसमें जो बेरोजगार है उसके लिए डब्बा का बिजनेस है। हमारे नाम से जो जुड़ना चाहते हैं उनको आप जरूर
जुड़ना चाहते हैं, मगर जो हार्ड वर्क करने के लिए वो हमसे काम नहीं जुड़ पाएंगे। जो खाली मैनेजमेंट के लिए, अपना नाम के लिए, ब्रांडिंग के लिए हमें बुलाते हैं, मगर हमारे हार्ड वर्क करने के लिए वो कभी बुलाएंगे। यहाँ पर जो है ना पूरे ऑडियंस में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, दे आर डूइंग MBA। आपको किसको डब्बावाला बनना है, ताली पकड़ के बम्बई में हमें जरूर डब्बावाला बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आपको लगता है कि इनमें से कोई डब्बावाला बनने वाला है? बनेगा तो मैं जरूर उनका स्वीकार करूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। 10,000 पेमेंट नहीं आता है। Thank you so much to Mr. Talekar and Mr. Medke for giving a wonderful presentation of management to. कल आए ना आए, आदरणीय हक साहब, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई चरण सिंह साहब, ओरा साहब और सभी को मुंबई वालों से फिर से सादर प्रणाम। मगर कल इस स्टेज पर हम हो ना हो, कल उस चेयर पर अब हो ना हो, मगर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन और जालंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन रहेगी सदा और मुंबई डब्बा रहेगा सदा। हम जैसे आपसे अभी अलविदा। Thank you once again, sir. And may I please request now Dr. Manoj Kumar, Group Director of CT Group of Institute, to please come here and present a memento to Mr. Haq for moderating this session, please. Thank you so much, sir. Thank you once again. Just a small reminder, wanted to update that this wonderful event is live webcasted by 360 Streaming Solutions. Okay, now I would like to welcome you all for the second session of SYMP with Professor Vivek Debroy. So a huge round of applause. He is a renowned Indian economist and as a speaker here.